All right, Hare Krishna to everyone. We'll start the prayers and within 5 minutes we will start the class. Okay. Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Amine Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashatyadeshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Jai Jagannath Jai Baladeva Jaya Subhadra Jai Baladeva Jaya Subhadra Jai Baladeva Jaya Subhadra Jaya Panchatattva Jaya Panchatattva Jaya Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinath Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavan Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय आप सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले okay we'll do mangalacharan first ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन
गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवत ग्रंथ राज श्रीमद भगवद गीता की जय। आप सभी समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So welcome back to yet another class from Bhagavad Gita. I hope you're all doing well. ISKCON Kukatpalli welcomes you for yet another chapter. But before that, जैसा कि हम जानते हैं, we will do the revision. आज I think आज अंकिता माता and पम्मी माता का turn है, right? Okay. Who want to go first? Okay, पम्मी माता जी. Yes, start कीजिए. Hare Krishna. Hare Krishna. This chapter 12 is the sequence of chapter 11, basically. Here Arjun is inquiring Lord Krishna which is the best way to worship him, impersonal or personal. So Krishna is clearly telling that impersonal way of worshipping is not the correct way. Impersonal way means these people, the yogis, they worship Brahmajyoti, not the actual God, not the Lord Krishna. And it is a very difficult path to achieve God because we have to suffer a lot of pain. Then because there is no austerity also, even though they study all the Vedic scriptures and other way of severe penance they do to achieve God, they will not achieve it. But what personal people do, they worship the Vigraha Roop. All the Dashavat, the Vigraha Roop means which is we have this direct connection. Deities, yes. Actually, he did not say, Mataji, that it is wrong. He said that this one is more better. He's not criticizing. So he's just saying that, in my opinion, this is correct. And Krishna also said Bhakti Yoga is the purest form in this Kali Yuga to worship him. Bhakti mode. So it is the transcendental worshipping of Lord Krishna. That is the true sense. Absolutely, yes. Transcendental, I mean, we should be pure while having the devotional service towards Lord Krishna. In any way, through chanting, through Sankirtan, to serving in the temple. Yes. Maybe it is mopping the floor or washing utensils, preparing garland for the Lord Any Krishna. menial service, yes. Any means. It should come from heart. And whatever work we do, it should be devoted to Lord Krishna. Whether we are eating food, whether we are working in an office. Even a small, we have to remember him whenever we do something. That is the purest form. Bhakti Yoga is the purest form, what Lord Krishna says. For the example, you have given Parikshit Maharaj. There were Gopikas and there were a lot of friends in Vrindavan for Lord Krishna. So that's what I understood. And that's it, Mataji. Thank you. It's already 7:05, so 5 minutes we'll give it to Ankita Mataji. Yes, thank you so much. Very well spoken. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. In this chapter, yesterday we talked about the devotional service, where from 1 to 7 shlokas we came to know about Lord Krishna's roop, and from 8 to 12 we came to know about different type of devotees, and from 13 to 20 we came to know about Shuddha Bhakti or Bhaktas who are there. So when Arjun asked Lord Krishna, who is more eager to serve you, or one who practices personalism or impersonalism, then Krishna says that personalism is more great. It's not about that impersonalism is wrong, but it's more easier. Personalism is more easier and it's great. And there are 3 types of people who worships, that is first one is who worships Brahma Jyoti, who focuses on light, and second one is who believes in meditate on Vishnu. And third one is Bhagwan. This is the best path. And we came to know about the differences between personalism and impersonalism.
where in a personalism, in Kali Yuga, our Yuga Dharma is like chanting and to do Hare Krishna Mahamantra, and in personalism, yogis who used to take a lot of physical pain, they inflict on themselves, Yes. and that's more tough path. And in personalism, there is no requirement of such physical pain, and this. Yes. All senses are towards Bhagwan, and in impersonalism, we have to control. We have to Control control the senses. Yes. And we also came to know how Srila Prabhupada also said that we don't have to be vegetarian or non-vegetarian. We have Yes. to be We need to be Krishnatarian, he says. Yes. That's what I came to understand. And yes, thank you so much, Mataji. That was very lovely. You have nicely written. I had asked Ashik Prabhuji also, I think. He is Mataji, I want to say a thing. Today is my exam, so can I switch off my video? I have to Yes, charge yes, yes. No problem. Yes. You can hear the recording also, Mataji. Not a problem. Yes, Thank you very much. Yes. So, so welcome back again. हमारे main class पे हम चलेंगे. Hare Krishna to everyone. Those who have joined little late. So, कल हमने चर्चा किया था devotional service पे. जैसे कि दोनों माताजी ने बताया कि कैसे अर्जुन के क्वेश्चन से ये स्टार्ट होता है एंड यू नो ही स्टार्ट्स आस्किंग कि ध्यान योग इम्पर्सनलिज्म ज्यादा बेटर है या ध्यान पर्सनलिज्म. सो भगवान उनको स्ट्रेट जवाब देते हैं दैट इट इज ऑलवेज पर्सनलिज्म जो आपको मेरे तक जल्दी पहुंचाएंगे. इट्स अ डायरेक्ट प्रोसेस. ओके, कंडीशंस हमने डिस्कस किया था कि इम्पर्सनलिज्म का क्या क्या कंडीशंस है कि डुअलिटी में स्थिर रहना है, कंट्रोल रहना है सेंसेस का, राइट. फिजिकल बॉडी पेन उनको बहुत रहता है एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. ये हमने बात किया. आगे के श्लोकास में हमने चर्चा किया कि डिवोटीज के भी सिम्टम्स क्या होते हैं, राइट. सो उनको कोई फिजिकल पेन का जरूरत नहीं रहता है, राइट. दे कैन डायरेक्टली एंगेज इन सर्विसेज. जैसे माता जी बता रहे थे कि मीनियल सर्विसेज, टेंपल का कोई भी सर्विस आप जब करते हैं तो वो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्योरिफिकेटरी प्रोसेस. ओके, ये सब आपको हेल्प करता है. सो नोस हमने बताया था कि डायरेक्ट यहाँ पे है नोस. इफ यू गो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस देन इट विल टेक टाइम टू रीच नोस. सो दैट इज इम्पर्सनलिज्म. ये हमने बताया था, राइट. एंड उनको बहुत सारा जैसे उपनिषद पढ़ना पड़ता है, उसका जो है अकेले रहना पड़ता है एंड देन दे हैव टू गो थ्रू अ लेंथी प्रोसेस. डिफरेंसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया था माता जी ने, सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट. एंड इसके अलावा हम लोग जो करते हैं दैट इज साधना भक्ति, देयर इज डिवोटी स्टेज, देयर इज प्योर डिवोटी स्टेज. तो हम लोगों को हमारे तरफ से एफर्ट्स जो है रखना चाहिए. हमने श्रीला हरिदास ठाकुर जी का एग्जांपल लिया था कि कैसे वो यू नो स्थिर थे. He was not affected by the women who was trying to influence him, right, like that. So last में हमने जैसे माता जी बता रहे थे अमरीश महाराज का भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया. प्रोप्राइटरशिप की हमने बात की, कैसे मटेरियल वर्ल्ड में हम सोचते हैं कि मैं करता हूँ, सब कुछ मैं हूँ, ऐसा हम सोचते हैं. जगन्नाथपुरी का हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, प्रताप रुद्र राजा का. सो एंड इससे डिवोटीज का क्वालिटी हमने डिस्कस किया था कि यू नो हाउ इफ वी टेक 2 स्टेप्स गॉड हमारे पास 4 कदम चल के आएंगे. ऑल दिस वी हैड डिस्कस्ड. परीक्षित महाराज, विदुर और दुर्योधन जी का एग्जांपल हमने देखा, प्रहलाद महाराज का देखा कि हाउ दे वर सो स्थिर. उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए थे, जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, राइट. उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बट हाउ आर वी रिएक्टिंग. कैसे हम, क्या हम भगवान को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, या फिर हम लोग निश्चित है कि यू नो ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी. Right? Where do we stand? That we need to understand from this chapter. And ये बहुत नेक्टेरियन पाथ है हमारा, जो बहुत सुंदर है. भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत आपको आनंद देगा, right? And it is a very sweet path. It's not a very difficult road. difficult है, but वो difficult road में भी हमको sweetness महसूस होगा. And again बार हर चैप्टर में जो है भगवान हमारे पास आके बोलते हैं कि you know you come back. अब मेरे बच्चे हैं, आप प्लीज you come back now. आप क्यों इतना झेल रहे हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में. This is how Shri Krishna is telling all of us to come back. Okay, so chapter 13 पे हम चलेंगे, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना. This is the chapter name. Chapter 13 is nature, the enjoyer and consciousness. This is the chapter. Now if you see हमने कल तक जैसे हमने 3 डिविजन्स में बांटा था भगवत गीता को, राइट. एंड इसमें जो है जो 7-12 चैप्टर्स का हमने डिस्कस किया था, अगर आपने नोटिस किया है तो हर चैप्टर के कंक्लूजन में जो है घूम फिर के भगवान यही बोल रहे हैं कि आप भक्ति कीजिए. इट्स अ सिंपल प्रोसेस, आपको इजी रहेगा, ये वो बता रहे हैं. चैप्टर 7 to 12 हर चैप्टर का कंक्लूजन में भगवान यही बात बार बार बताते हैं. ऑफ कोर्स वो हमको ऑप्शंस दे रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहा है हमको, बट हमारे प्रोसेस को इजी करने के लिए, राइट, थोड़ा जो इंटेलिजेंस दिया है हमको वो हम अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं भक्ति में, ये हमें बताया जा रहा है.
ओके सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में जो है स्टार्टिंग में भगवान ने चैप्टर 3 में कर्म योग के बारे में डिस्कस किया था, पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे कर्म कीजिए, कर्म विकर्म अकर्म में डिस्कस किया था, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे आप बंध जाते हैं, क्यों हमारे साथ ये सब होता है, ऑल दैट ही हैज गिवन अस नॉलेज। फिर उन्होंने हमको भक्ति योग, जैसे लास्ट के चैप्टर्स में हमने सिर्फ भक्ति योग ही डिस्कस किया था, सब कुछ बात करने के बाद अगेन वी केम टू अगेन भक्ति योगा, राइट, ये भी बताया था। एंड थर्ड, अब जो ज्ञान मिला है हमको, सो फार हम लोगों को जितना ज्ञान मिला है, ये हमको कैसे यूज करना है भक्ति में, ये आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। ओके सो फार जो है हमने आत्मा एंड सेकेंड चैप्टर में आत्मा एंड शरीर के बारे में भी टच किया था, आत्मा एंड बॉडी। सो इन डिटेल हम इस पे थोड़ा सा इस चैप्टर में हमको डिटेल में कुछ श्लोकास आएंगे, in fact many of the shlokas. So first हम डिविजन की बात करते हैं कि क्या क्या हमें इसमें है। भाविन प्रभु, अर्चना माता, सतीश प्रभु और नंदिनी माता, आप प्लीज अपने अपने वीडियो कैमरास ऑन कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। सो हम लोग डिविजन की बात करेंगे। सो 1 to 7 श्लोकास अर्जुन के क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे यहाँ पे, अर्जुन और कृष्ण के। अर्जुन क्वेश्चंस पूछते हैं 6 क्वेश्चंस, उसके बाद वो कृष्ण जो है जवाब देते हैं। ओके एंड यहाँ पे आचार्य बोलते हैं कि अर्जुन के क्वेश्चन, ओके यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछते हैं अर्जुन, दीज आर वेरी क्लेवर क्वेश्चंस। ओके, इट इज नॉट लाइक नॉर्मली वो पूछ रहे हैं कि क्या नहीं क्या है, बट ही इज आस्किंग वेरी मच इन डिटेल की बॉडी क्या है, एंड वी विल सी द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट मूवमेंट। नाउ आचार्य बोलते हैं उनका क्या मत है इन क्वेश्चंस को लेके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 8 to 12 में एक ज्ञानी के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण है ज्ञानी के, ये हम चर्चा करेंगे। 13 से 19 यानी कि 13 to 19 we will again discuss about आत्मा and परमात्मा in detail. Okay, 20 to 30 नंबर श्लोका में हम भक्ति योगा डिस्कस करेंगे। ओके, प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। सो श्लोका नंबर 1 and 2 साथ में आ रहे हैं, we will do it individually. अर्जुन उवाच, ओके, श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन उवाच, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं स केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी कि भोक्ता, ओके, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेत के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तो यहाँ पे श्लोका नंबर 1 में अर्जुन 6 क्वेश्चंस पूछते हैं कृष्ण से। वो क्या क्या है आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रकृति, नेचर, जो हम नेचर बोलते हैं, नेचर इज ब्यूटीफुल, दिस दैट। सो व्हाट इज एग्जैक्टली नेचर, ये वो बता रहे हैं। ओके, सेकंड है पुरुष, पुरुष यानी कि हु इज द एंजॉयर, कौन है जो अल्टीमेटली एंजॉय कौन कर रहा है इन सब चीजों को, दैट इज हिज आस्किंग, एंजॉयर कौन। थर्ड इज क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि फील्ड। ओके, कौन है, ये फील्ड क्या है। ओके, हम लोग इसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट श्लोका में। फोर्थ इज क्षेत्रज्ञ, ओके, हु इज द नोअर ऑफ द फील्ड, जो ये फील्ड को जानता है वो कौन है, राइट। फिफ्थ इज ज्ञान, दैट इज नॉलेज, एक्चुअल में नॉलेज क्या है। ओके, सिक्स्थ इज ज्ञेय यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है। सो दीज आर द 6 क्वेश्चंस, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान एंड ज्ञेय। ओके, नेचर, एंजॉयर, फील्ड, नोअर ऑफ फील्ड, नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। श्लोका नंबर 2 पे चलेंगे, भगवान इसके आंसर्स दे रहे हैं। ओके, श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया है श्लोका नंबर 2 में। सो हम इसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नाउ फर्स्ट वो क्या बोल रहे हैं कि जो ये शरीर है, ओके, वो क्षेत्र है, यानी कि हमारा जो बॉडी है दैट इज क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर एंड थोड़ा टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा यूज होगी, तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। क्षेत्र मतलब बॉडी, ओके, जो इस बॉडी को जानता है दैट इज द सोल, दैट इज क्षेत्रज्ञ। ओके, बॉडी एंड सोल की बात हो रही, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैड टोल्ड। एंड इसके अलावा जो भगवान क्या बोलते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या था उनका, ओके, फर्स्ट प्रकृति पूछा उन्होंने, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, ऑल्दो ये आगे की श्लोकास में आएगा, बट विल स्टिल डिस्कस इट। तो एक एक सीरियल वाइज करते हैं। प्रकृति मींस नेचर, राइट, मटेरियल नेचर की बात हो रही है। सो इन सिंपल टर्म्स प्रकृति मींस मटेरियल नेचर। सेकंड क्या बोला उन्होंने, एंजॉयर कौन, पुरुष कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान, राइट, लाइक दैट। पुरुष कौन है, दैट इज गॉड, राइट, परमात्मा या फिर गॉड, सेम थिंग। ओके, थर्ड इज क्षेत्र, फील्ड हमने डिस्कस किया, दैट इज बॉडी। क्षेत्रज्ञ इज सोल, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि कितने सोल्स हैं। ज्ञान इज जो जिनको इन सब का नॉलेज है कि भोक्ता कौन है, एक्चुअल में कौन एंजॉय कर रहा है, बॉडी क्या है, ये सब जिसको पता है, दैट पर्सन इज ज्ञान। ओके, दैट इज ज्ञान। ओके, एंड ज्ञेय इज
जो इन सबको वी विल कम बैक टू ज्ञेय, आई थिंक इसके ऊपर डिटेल श्लोका है कमिंग इसमें, सो वी विल डिस्कस दैट। ओके, जो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, जो ये नॉलेज है इसका ऑब्जेक्ट कौन है, मेन कौन है, ये नॉलेज का सोर्स क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। नाउ जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे कोई भी फसल होती है दैट इज फील्ड, राइट, लाइक दैट हमारा बॉडी इज लाइक अ फसल, ओके, इट्स लाइक अ फील्ड। ओके, अभी हम जो फसल है, जो फील्ड होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई गेहूं डालते हैं, राइट, कोई हरी सब्जियां उगाता है, सो वॉट एवर ग्रेन्स यू पुटिंग, वॉट एवर सीड्स यू आर पुटिंग, उस तरीके से पेड़ आता है, करेक्ट, यस और नो? जो हम अगर मैंगो का सीड डालेंगे, इमली का डालेंगे, तो वही आएगा। सो उसी तरीके से हमारा ये शरीर है, हमको जो शरीर मिलता है उसमें जिस तरीके की हम इच्छाएं डालते हैं, ओके, उस तरीके से हमको शरीर मिलता है, ये इस श्लोका में बताया जा रहा है। यानी कि आपको जो शरीर मिला है उसको यूटिलाइज करना है, मिसयूज नहीं करना है, राइट, एडवांटेज नहीं लेना है, ऐसा वो बोल रहा है। सो इट इज अप टू अस कि हम इस क्षेत्र में कौन से बीज डालते हैं, क्या हम बुरे हैबिट्स डाल रहे हैं इसमें, राइट, ऐसी चीजें जो हमें पता है शरीर के लिए भी अच्छे नहीं, मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छे नहीं, आर वी पुटिंग दोस काइंड ऑफ सीड्स, ये हम देखेंगे। ओके, एंड क्षेत्रज्ञ की हमने बात की थी, दैट इज सोल। सो सोल दो तरीके के होते हैं, सोल एंड सुपर सोल। जैसे आत्मा परमात्मा बोला, राइट, आत्मा इज सोल, परमात्मा इज सुपर सोल, ओके, लाइक दैट। सो आत्मा का क्या है, नाउ इफ यू सी, हम सब में एक एक सोल है, हम सब में अपना अपना इंडिविजुअल सोल है। नाउ दिस सोल एक्चुअली नोज अबाउट इट्स ओन सेल्फ, ओके, हमारा शरीर में जो आत्मा है वो सिर्फ हमारे बारे में जानता है। मैं कविता माता जी के आत्मा के बारे में नहीं जानती हूँ, राइट, भावेन प्रभु जी के आत्मा के बारे में नहीं जानती हूँ, राइट, बट परमात्मा कैसे है ना, जिसने हम सबको बनाया है, उन सबको सबके बारे में मालूम है, दैट इज परमात्मा। ही नोज अबाउट ईच एंड एवरी सोल, इसीलिए उनका पावर, लाइक पोटेंसी ज्यादा है, दिस इज भगवान का एक एनर्जी ऐसा। सो एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे फील्ड है, जैसे फील्ड की हमने बात की, किसान है, राइट, किसान को उसके फसल के बारे में मालूम रहता है, राइट, ही नोज अबाउट हिज ओन फील्ड की क्या उग रहा है, क्या नहीं उग रहा है, बट उसको जो 3 मील दूर है खेत, उसमें क्या उग रहा है, या 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्या उग रहा है, वो उसको पता नहीं है, देयर इज नो आइडिया दैट ही हैज, राइट। सिमिलरली गवर्नमेंट की अगर बात करें, राइट, या उस राज्य के राजा की अगर बात करें, उसको हर चीज का इंफॉर्मेशन रहता है, गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट होता है, राइट, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, सो ही हैज अ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, ऐसा हम समझ सकते हैं कि आत्मा परमात्मा, राइट, सोल एंड सुपर सोल डिफरेंसेस बता रहे हैं। एक और एग्जांपल से समझेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, श्री प्रभुपाद ने काफी टाइम ये कोट किया था अपने लेक्चर्स में, दैट इज एक चिड़िया, राइट, 2 चिड़िया, ओके, देयर इज अ ट्री, एक पेड़ के 2 पंछी, ओके, 2 बर्ड्स, सो देयर इज अ बिग ट्री जिसमें 2 बर्ड्स बैठे हैं, वन इज आत्मा बर्ड एंड वन इज परमात्मा बर्ड। अब ये जो आत्मा बर्ड क्या करता है, आत्मा वाली जो चिड़िया है, ये क्या करती है, फर्स्ट चिड़िया ये सब जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं खा रही है, राइट, गर्मी आ रहा है तो ना दुखी हो रही है, विंटर आ रहा है तो खुश हो रही है, राइट, सारे तरीके के फल खाती है, मीठा भी खाएंगी, जो सड़े हैं वो भी खाएंगी, जिसमें कीड़े हैं वो भी खाएंगी, और जिसमें अच्छे नहीं है वो भी खाएंगी, राइट। सो डुअलिटीज में रहती है हमेशा, स्वीट बिटर, हैप्पीनेस सैडनेस, राइट, कभी वो बैठती है चिड़िया पेड़ पे डाली पे, राइट, कभी वो उड़ जाती है, राइट, कभी वो घूमने लगती है, ऑल दैट शी इज एंजॉय, दिस इज बर्ड नंबर 1। अब जो बर्ड नंबर 2 है जो उसके साथ है, वो हिलता नहीं है बिल्कुल, राइट, वो वहीं पे है, राइट, वो कुछ करता भी नहीं है, लाइक ही हैज नो वर्ड एक्सेप्ट फॉर वन इंपॉर्टेंट वर्क, दैट इज वो विटनेस करता है, ओके, वो बर्ड क्या क्या कर रहा है, राइट, वो सब ऐसे विटनेस करते रहता है, एंड ये परमात्मा है एक्चुअली, ओके। सो ऐसे 2 बर्ड्स होते हैं। तो ये परमात्मा क्या करता है, ये साक्षी, लाइक साक्षी की तरह, हमने पहले भी डिस्कस किया था, विटनेस होता है हमारे पास। सो हमारे अंदर 2 सोल है, एक हमारा खुद का सोल एंड देन इज परमात्मा हु इज वाचिंग अस, राइट। अब जब ये पहला जो बर्ड है, जब उसके सारे एक्टिविटीज रुक जाते हैं, वो क्या हर चीज खा रहा है, यहाँ से खा रहा है, वहां से खा रहा है, राइट, एंजॉय कर रहा है, नहीं कर रहा है, दुखी हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब एक्टिविटीज जब वो स्टॉप कर देगा, ओके, एक टाइम आएगा जब उसको रियलाइज होगा कि अब नहीं, इसको रोक देता हूँ, राइट, तब वो क्या करता है, परमात्मा की तरफ घूमता है, राइट, वो देखता है कि नहीं, एक और है यहाँ पे मेरा दोस्त, राइट, परमात्मा है। सो इस तरीके से जो है, जब वो घूमता है परमात्मा की तरफ सजेशंस के लिए, तब जो है परमात्मा वाली चिड़िया उसको जो है हेल्प कर, ही विल गाइड, ओके। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, कि जब तक वो टर्न नहीं होता है, जो फर्स्ट बर्ड अपने ही धुन में लगा हुआ है, वो जब तक टर्न नहीं होता, देन तब तक परमात्मा गाइड नहीं करते हैं, ओके। ये हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बिकॉज परमात्मा इज नॉट इंटरफियरिंग। जो पहला चिड़िया, उसको जो खाना है खाने दीजिए, नो प्रॉब्लम, ओके, आई विल वॉच, ओके। ना परमात्मा क्या करता है,
बिकॉज उसको आत्मा के बारे में उससे ज्यादा मालूम है। आत्मा का तो वो अपने में ही विलीन है, उसको मालूम नहीं कि वो क्या क्या कर रहा है। सो बट परमात्मा सेकंड बर्ड शी नोज, बिकॉज वो देख रहा है वहां पे, सो ही नोज कि आत्मा क्या क्या कर रहा है। अब ये क्या करता है, जितने भी एक्टिविटीज इसके चले हैं सबका नोट्स बनाया, राइट, वो सब जो है प्रकृति को जाके हैंड ओवर कर लेता है कि चलो ये सैंक्शन है, अब आपको जो इसको देना है वो दीजिए, राइट। ये इसका पूरा चिट्ठा है, हिस्ट्री है। अब इसके हिस्ट्री के हिसाब से इसको अच्छे एक्टिविटीज, अच्छे फ्रूट्स देना है दीजिए, बुरे फ्रूट्स देना है दीजिए, खुशी देना है दीजिए, ऐसा। सो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट, कि हमारी क्या जैसे इस बर्ड का भी जो है परमात्मा चेक करता है क्या एलिजिबिलिटी है इसका, कितने इच्छाएं है इसके मन में, राइट, सैंक्शन किया एंड देन हो जाता है। हमने पहले भी गॉड इज वॉचिंग एक बताया था, राइट, हमने विटनेसेस बताया था कि कैसे जो है हर तरफ भगवान हमें देखते रहते हैं, राइट। कोई बताना चाहेंगे क्या क्या एग्जाम्पल्स हमने देखा था इसमें? गॉड इज वॉचिंग, कैसे भगवान हमको हर तरफ विटनेस कर रहे हैं, किसी को याद है? नंदिनी माता, रचित प्रभु, यस, हरे कृष्ण, बोलिए। Through moon, sun and हाँ, air. मून, सन, यस। रचित प्रभु जी आप कुछ बोल रहे हैं? यही बोल रहा था, यही बोल रहे थे, ओके, थैंक यू सो मच। यस, मून, सन, हवा, राइट, हवा इज देयर एवरीवेयर, राइट, लाइक दैट गॉड इज वॉचिंग अस एवरीवेयर। सो ऐसे विटनेस उनके एजेंट्स चल रहे हैं, सीक्रेट एजेंट्स, राइट। हमें पता होना चाहिए दैट हम, इसीलिए हम हर एक एक्टिविटी जो है हमको देख समझ के जो है करना चाहिए, लाइक दैट। ओके, एक एग्जांपल से इसको समझेंगे, जैसे ओनर ऑफ द बिल्डिंग। ओके, अभी कोई बिल्डिंग है, दैट इज क्षेत्र, राइट। उस बिल्डिंग में आपको ओनर भी मिलेगा, उस बिल्डिंग में आपको रेंट वाले भी मिलेंगे, टेनेंट्स मिलेंगे, राइट। अब जो टेनेंट है, राइट, सपोज एक 10 माले की बिल्डिंग है, उस टेनेंट को, अगर ये नॉर्मल अपार्टमेंट्स है तो एक दूसरे का घर का भी नहीं मालूम रहता है, सिर्फ उनका जो 501 504 फ्लैट नंबर है उतना ही उसको मालूम रहता है, राइट। 701 में क्या चल रहा है उसको नहीं मालूम, राइट। सिमिलरली बट ओनर को मालूम रहता है कि हर घर में जो है क्या क्या चलता है, कैमरा फिक्स होते हैं हर तरफ, राइट। सो ही नोज व्हाट इज हैपनिंग इन ईच एंड एवरी हाउस। सिमिलरली ये बताने के लिए कि परमात्मा जो है हर तरफ देखते हैं, हर तरफ उनको मालूम रहता है, बिकॉज ही इज द क्रिएटर, राइट, लाइक दैट। तो ये क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ का एग्जांपल्स हैं। हम श्लोका नंबर 3 पे चलेंगे, इट इज द सेम थिंग वैसे। माता जी। यस, जब आप बात करते हैं जैसे कि 2 सोल्स रहते हैं, तो स्पिरिचुअली बात करते हैं कि एक्चुअल में बॉडी में 2 सोल रहते हैं? नहीं, एक्चुअल में रहते हैं ना। स्पिरिचुअली आल्सो देयर आर 2 souls, those 2 souls are in the body। ओके, हमारे अंदर एक सोल नहीं रहता, एक तो हमारा खुद का सोल है, बट बिकॉज हमने बताया था कैसे क्षीरोदक्षाय विष्णु जो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अणु अणु में वो रहते हैं, सो दैट इज परमात्मा के तौर पे वो हमारे अंदर रहते हैं। जब ध्यान योगी की बात हमने की थी तो हमने बोला कि वो मेडिटेशन करते हैं, राइट। वो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, बट वो लोग भगवान जो फॉर्म हमारे अंदर है उसमें विश्वास करते हैं, विष्णु फॉर्म में। सो दैट 4-handed विष्णु इज क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में 2 सोल होते हैं हमारे अंदर। सो स्पिरिचुअली आल्सो इट इज करेक्ट, एंड ऐसे देखा जाए तो भी वी हैव 2 souls। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोका नंबर 3 में चलेंगे। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्राशु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तज्ज्ञानम मतम मम। क्या बोल रहे 3 में? हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ। ओके, और इस शरीर तथा इस ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, मेरा ये मत है, राइट। सो वही बोल रहे हैं कि आई एम द नोअर ऑफ ऑल द बॉडीज, यू शुड नो दिस। एंड जो ये सब इंफॉर्मेशन जानता है वो ज्ञानी है, वो ज्ञाता है, दिस इज नॉलेज। ये बोल रहे हैं कि मेरा, दिस इज माय ओपिनियन, राइट। सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग हियर। नाउ श्लोका नंबर 4 पे भी वही रहेगा। तत्क्षेत्रम यच्च यदृक्ष यद्विकारी यतश्च तयत् सयायो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। श्लोका नंबर 4। अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, क्या यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। ओके, सो ये कहाँ से आ रहा है? तो बोल रहे कि सुनो, अभी सुनो कि मैं आगे जो है आपको डिटेल में बताऊंगा, जो आपने क्वेश्चंस पूछे है ना, नाउ आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। डिटेल में बोलूंगा कि कैसे हाउ एवरीथिंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे सब कुछ बना है, राइट, क्या क्या चेंजेस इसमें आते हैं, राइट, क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं, कौन है जो सबको जानता है, कैसे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ये सब जो है डिटेल में आगे बताएंगे कृष्णा। ओके, 6 श्लोका एंड कहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, वी विल सी श्लोका नंबर 5 नाउ।
ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधा पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्भिर्विनिश्चितः। श्लोका नंबर 5। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञान का वर्णन किया है। सिंपल, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हु नोज, हु हैज द नॉलेज कि फील्ड ऑफ एक्टिविटीज क्या है, राइट, कौन है इसका मेन सोर्स, वो सब जिसको पता है, राइट, ये सब जो है ऋषि मुनि, मतलब जो वैदिक राइटिंग्स है उसमें जो वेरियस ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ, उसमें ये सब लिखा हुआ है, इनका वर्णन है, ऐसा वो बता रहे हैं। कहाँ पे है? दिस आल्सो वी विल सी। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र के कार्य कारण में समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। ओके, इट इज स्पेशली रिटर्न इन वेदांत सूत्र, ये वो बता रहे हैं विथ ऑल द रीजंस भी बता रहे हैं कि क्या कॉज है, क्या इफेक्ट है, ये सब बता रहे हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको और डिटेल में। श्लोका नंबर 6 एंड 7 साथ में आ रहे हैं, वी विल डू इट। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच इंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेषा सुखम दुःखम संघाश्चेतन धृतः एतत् क्षेत्रम समासेन सविक्रम उदाहृतम। ओके, तो ये बहुत, इसको हम वी विल डिस्कस दिस इन मोर डिटेल। 8 to 12 हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। दिस आल्सो वी विल सी। क्या बोल रहे हैं 6 और 7 में? पंच महाभूत, ओके, 5 एलिमेंट्स जो हमने बात किया था, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त जो सटल बॉडी है उसकी बात कर रहे हैं। तीन गुणों की अप्रकट अवस्था, मतलब ये हमको दिखते नहीं, इट्स बियॉन्ड दैट मोड्स ऑफ नेचर। ओके, मतलब जो 3 मोड्स है उसमें जो सटल है दैट इज these 3, ऐसा बोल रहे हैं। 10 इंद्रिया, राइट, वी हैव डिस्कस, तथा मन, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय वश, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्ष्य तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतः क्रिया यानी कि विकार कहा जाता है। सो हमने स्टार्टिंग में 24 एलिमेंट्स डिस्कस किया था, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, पंच महाभूत, राइट, मन, बुद्धि, अहंकार और महातत्व। ओके, ऐसे हमने जो है 24 एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा इच्छा भी, इच्छा भी बोल रहे हैं, सुख भी बोल रहे हैं, दुख भी बोल रहे हैं, ये सब जो है डिस्ट्रेस, कोई भी लाइफ सिम्टम्स है, राइट, ये सब जो है एक्टिविटीज में आते हैं। जो क्षेत्र, जो बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, दैट इज ऑल द क्षेत्रज्ञ का फील्ड में क्या क्या होता है, ये सब ये बता रहे हैं। 8 to 12 श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना लंबा है ये 8 to 12 इन द डिस्क्रिप्शन, बट हम इसको मेन पॉइंटर्स में कवर करेंगे, आप लोग प्लीज इसको डिटेल में पढ़िएगा। ओके, सो 8 to 12 साथ में आ रहे हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षंतिर आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मा विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम, आसक्तिर अनाभिस्वंगाः पुत्रधारा ग्रहादिषु, नित्यं च सामचित्तात्वम, इष्ठानीतो प्रतिष्ठितो पपातिषु। ओके, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्याभिचारिणी, विविक्ता देश सेवितम, अरार्थ्य ज्ञान संशदि, अध्यात्म ज्ञान नियतत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यत् अतो अन्यथा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। विनम्रता, दम्भहीनता यानी कि दम्भहीनता इज प्राइडलेसनेस, जिसमें अहंकार नहीं है। अहिंसा, अहिंसा सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आप गौर से सुनिए, ये क्वालिटीज बता रहे हैं। आत्मसंयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय तृप्ति, सेंस सैटिस्फैक्शन के विषयों में परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह में से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, और इनके अतिरिक्त जो भी है वो मैं अज्ञान को घोषित करता हूँ। सो ज्ञान क्या है, राइट? हम लोग सब एजुकेशन ले चुके हैं, ले भी रहे हैं।
सो बट एक्चुअली व्हाट इज द रियल नॉलेज, वो ये यहाँ पे बता रहे हैं. सो इस श्लोका में जो है 20 एलिमेंट्स बताते हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट दिस श्लोका, हम लोग सोल और सुपर सोल का जस्ट एक 3 डिफरेंसेस बात करेंगे. ओके, सो सोल क्या सोचता है? नंबर 1 कि ये सोल सिर्फ अपने आप को जानता है, राइट, एंड सुपर सोल जो है सबके बारे में जानता है. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेकंड, सोल क्या सोचता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, लाइक राइट, आत्मा सोचती है कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ. बट एक्चुअल में कंट्रोलर नहीं है. कंट्रोलर कौन है? परमात्मा इज कंट्रोलर, और हम जो है कंट्रोल्ड है. कंट्रोलर एंड कंट्रोल. ओके, आत्मा परमात्मा, लाइक सेकेंड वन. थर्ड इज भ्रमित रहता है, राइट. ये जो सोल है हमेशा भ्रमित रहता है, राइट. इसको जो है सेवक का पोजीशन ये भूल जाता है कि मैं सर्व करने आया हूँ यहाँ पे, राइट. एंड ये एक्चुअल पोजीशन, इसका जो दास का पोजीशन है, वो भूल के इल्यूजन में आके, माया में आके ये सोचता है कि मैं करता हूँ. दिस इज द थर्ड डिफरेंस. यहाँ पे परमात्मा क्या है? ही सर्वज्ञ. ओके, हिज प्रोप्राइटर, ही नोज एवरीथिंग, राइट, एंड ही नोज मोर देन आत्मा. दैट इज व्हाई उनको सर्वज्ञ कहा गया है यहाँ पे. सो दिस आर द 5. यहाँ तक जो है श्लोका नंबर 7 तक हम 5 क्वेश्चंस को आंसर करते हैं. नाउ द लास्ट पार्ट जो है ये सेकंड पार्ट से स्टार्ट हो रहा है. दैट इज 8 to 12 श्लोकास हमने बोला था स्टार्टिंग में. 3-4 डिविजन्स में हमने किया था, राइट. 1 to 7 अर्जुन के क्वेश्चंस हो गए. 8 to 12 सिम्टम्स ऑफ ज्ञान. ज्ञान का क्या है? एक ही श्लोका में बता रहे हैं, लाइक 4 श्लोकास है टुगेदर, दैट वी विल सी. नाउ इसमें जो है 20 सिम्टम्स बताए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है. हमारे शिक्षा गुरु एक इस पे, इफ इट इज जस्ट क्लेनलीनेस, उस पे ही 1-1.5 घंटे का लेक्चर चलता है. इट इज सो इम्पोर्टेंट. ओके, सो 20 सिम्टम्स होते हैं. जो ये 20 सिम्टम्स को जानता है, जिसको इसका नॉलेज है, दैट इज ज्ञान, ऐसा ये बता रहे हैं. जो भी ये 20 सिम्टम्स के अलावा है वो अज्ञान है. इनमें से कुछ चीजें हमको डायरेक्टली समझ में आती है, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल टेक दिस इन डिटेल. फर्स्ट इज ह्यूमिलिटी, राइट. ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता. ज्यादा प्राउड नहीं रहना, राइट. विनम्र होके सबमिसिवली हम रहना, दैट इज वन क्वालिटी. प्राइडलेसनेस, राइट, दम्भहीनता, जिसको ज्यादा अहंकार नहीं है, दैट क्वालिटी वी शुड हैव. नॉन वायलेंस, अहिंसा नहीं करना है, राइट, जीवों के प्रति, किसी के भी प्रति, राइट. टॉलरेंस, सहिष्णुता, वी हैव टू टॉलरेट एवरीथिंग. ओके, आप ना ये 20 में से कितने पॉइंट्स आपको आते हैं वो टिक कर लेना कि मेरे में क्या क्या क्वालिटी है. तो हमको हम बाद में डिस्कस करेंगे. हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओके, अपने पास रखिए. यू विल नो कि हमें कहाँ इंप्रूव होना है. दिस इज लाइक लिटिल पर्सनल, सो आपके स्पेस में नहीं आएंगे. सो नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी. ओके, सिंप्लिसिटी क्या है? हमारे पास सरलता. इज इट दैट? एंड नेक्स्ट इज अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर. क्यों हम अप्रोच करते हैं? ज्ञान पाने के लिए. अगर हमको ज्ञान चाहिए तो डेफिनेटली वी हैव टू हैव अ स्पिरिचुअल मास्टर, वरना हम अपनी जो थिंकिंग है उससे ही सोचने लगेंगे. तो दैट्स व्हाई अगर हमको ज्ञान चाहिए, we need a spiritual master. So accepting a spiritual master is one. Next, cleanliness की बात हो रही है, यानी कि स्वच्छ. हिंदी में क्या दिया है? पवित्रता. ओके, स्वच्छ रहना. स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, राइट. सो स्वच्छता डज नॉट मीन कि सिर्फ बाहरी स्वच्छता, राइट. ऐसा नहीं कि रूम क्लीनिंग एनीथिंग. दैट इज डेफिनेटली देयर. ओके, इट इज सेड, आपने ये सुना होगा, क्लेanलीनेस इज गॉडलीनेस, राइट. कभी सुना आपने? इट इज वेरी ट्रू. क्लेanलीनेस मीन्स गॉडलीनेस. गॉड, अभी जैसे बोलते शरीर मंदिर है, राइट. सो वी हैव टू ऑलवेज कीप इट क्लीन, राइट. हमको 2-3 बार नहाना है, ऐसा बोलते हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स में, राइट. वी शुड टेक शावर ट्वाइस, क्योंकि हमारा एटलीस्ट एक्सटर्नल इंप्योरिटीज तो वॉश हो जाते हैं, ऐसा, राइट. सो इंटरनल क्लेंजिंग की भी यहाँ पे बात हो रही है, राइट. मतलब जैसे अहंकार है, बैड क्वालिटीज है, उसको भी क्लीन करते रहना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये बोल रहे हैं. नेक्स्ट क्या है? स्टेडीनेस, यानी कि स्थिरता होनी चाहिए. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल मींस माइंड बोलता है, ये करना है, वो करना है, ऑफर आ रहा है 4 और ले लीजिए, राइट. यू सी, माइंड इज ऑलवेज गाइडिंग अस, कि मिसगाइडिंग अस. एक्चुअली मिसगाइड करता है, ये करो वो करो. बट वी शुड हैव सेल्फ कंट्रोल कि आई नो दैट दिस इज नॉट गुड फॉर मी, देन आई विल नॉट डू इट. ओके, देन इज रिनंसिएशन, मतलब आत्म संयम. रिनंसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. ओके, मतलब जो भी इंद्रिय तृप्ति के विषय है, इसको जो है हमको मालूम होना चाहिए. व्हाट डू वी वांट, क्या चाहिए हमको एग्जैक्टली, और क्या नहीं चाहिए. हम उसके पीछे नहीं भागना. दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन. जो नहीं चाहिए फिर भी मन बोल रहा है एक बार कर लेना, एक बार देख लेना, दैट वी शुड नॉट डू. वी शुड हैव सेल्फ कंट्रोल, ऐसा वो बता रहे हैं, राइट. आत्म संयम होना चाहिए. एंड एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, अहंकार का अभाव नहीं होना चाहिए. एंड ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो साइकिल है, इससे बाहर कैसे निकालना है, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, ये हमें जानना है, राइट. दिस इज नॉलेज, राइट. एंड इसके बाद डिटैचमेंट. ओके, नाउ डिटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट मींस किसी भी तरीके का अननेसेसरी जो चीजें होती है लाइफ में, उस पर फोकस नहीं करना है.
राइट, बहुत सारी आएंगी चीजें, हमें ऐसा नहीं कि पूरा जो है क्लीन स्लेट मिलेगा, नहीं, अननेसेसरी चीजें आएंगी। और हमें ये इस पे ध्यान नहीं देना कि वो आगे वाला क्या कर रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, राइट, ये क्या कर रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है। वी शुड नॉट थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग, ये सब अननेसेसरी है। हमारे लिए क्या आवश्यकता है, मेरे खुशी के लिए, मेरे सोल जर्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट वी नीड टू फोकस ऑन, राइट। ये जो गॉसिप्स करते हैं, ऑल दीज आर बैड क्वालिटीज, ये वो बताना चाह रहे हैं। डिटैचमेंट का एक्चुअल मतलब ये है, राइट। देन फ्रीडम फ्रॉम इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए, वैराग्य, वैराग्य इज डिटैचमेंट, ओके। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, ओके। इसका मतलब क्या है, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द एंटेंगलमेंट विद चिल्ड्रन, वाइफ, होम एंड द रेस्ट, ओके। देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये नहीं बोल रहे कि सब कुछ घर बार छोड़ो, लाइक नॉट दैट, ओके, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स, ओके। यहाँ पे बोल रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हम पूरा लाइफ जो है फैमिली, घर, बीवी, बच्चा, दुकान, मकान करते रहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, राइट। हम इसको कैसे करेंगे, फिर एग्जीक्यूट भी करना है ड्यूटीज, तो हमको ऐसे सोच के एग्जीक्यूट करना है कि हाँ, अब शरीर मिला है, अब ये फैमिली मिली है मेरे कर्मों के हिसाब से, आई हैव टू एग्जीक्यूट माई ड्यूटीज, राइट। सो 100% जो है हमें ड्यूटीज एग्जीक्यूट करना है। ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग क्या किस में फंस जाते हैं, ड्यूटीज के चक्कर में हमको फिर एंड में हम सोचने लगता है कि मैं एंजॉय करूंगा, अब मैं आया हूँ ना, लाइफ मिला है, यू ओनली लिव वंस, मैं एंजॉय करूंगा इस जीवन को, एंजॉयमेंट में फंस जाता है, राइट। दैट इज समथिंग वी शुड अवॉइड, ऐसे बोल रहे हैं, ओके। और इसको अवॉइड करके ड्यूटीज एग्जीक्यूट करना, भगवान का साधना करना है, भगवान का सेवा करना है, ऐसे वो बता रहे हैं। सिर्फ फैमिली 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 करके जो भगवान को आजकल साइड आउट कर दिया है सब लोगों ने, दैट इज रॉन्ग। इसकी वो बात कर रहे हैं कि वो ऐसे एंटेंगलमेंट में ना फंसे, इतना फैमिली के बारे में सोच सोच के भगवान को जो साइड कर दिया कोने में। आजकल देखिए आप डीटी रूम्स में, पहले तो होते थे सब लोग, अच्छा पूजा घर होता था, आजकल कबर्ड के अंदर मिलेंगे आपको भगवान, अरे कोने में इतना छोटा सा रहेगा, अपना रूम बहुत बड़ा है, पहले भगवान का भी रूम अलग होता था, आजकल क्या एक छोटा सा वॉल पे लगा देंगे एक वुडन का, उस पे थोड़ा सा छोटा जो है विग्रह रहेंगे। दिस इज, हमने ऐसे साइड आउट कर दिया था। हमारे शिक्षा गुरु बोल रहे थे कि जब वो एक किसी घर में गए थे, तो बहुत बड़ा सा घर था, राइट, लाइक पूछा कि भगवान का रूम कहाँ पे है, तो कबर्ड खोल के बता रहे कि यहाँ पे है भगवान, तो he has everything but कबर्ड में है भगवान, so it is like that। तो ये नहीं करना चाहिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाइए, बट भगवान को आप मत भूलिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इवन माइंडेडनेस की डुअलिटीज में स्थिर रहना है, राइट। प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट इवेंट्स, आपको अच्छे भी इवेंट्स आएंगे, बुरे भी इवेंट्स आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, खुशियां आएंगी, सब में स्थिर रहना है, ये वो बोल रहे हैं। कॉन्स्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी, राइट। क्या बोल रहे हैं, निरंतर भक्ति करना है, कॉन्स्टेंटली भक्ति करना है, दिस वी आर सेइंग। नेक्स्ट वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि एकांत स्थान में रहने की इच्छा। अगेन यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि एकांत स्थान में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के फॉरेस्ट जाना है, दिस इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग। एकांत का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो एसोसिएशन है, बैड एसोसिएशन जो हमको मिलता है, जो हम उससे एकांत आना है, एकांत में आना है, उससे दूर रहना है, राइट। वी ऑलवेज सी ना, पीपल हमको अच्छे भी मिलते हैं लाइफ में, बुरे भी मिलते हैं, सो ऐसे लोग जो भगवान के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, नास्तिक है, और हु इज डिस्ट्रैक्टिंग अस, हमको भटका रहे हैं भक्ति से, ऐसे लोगों से एकांत में रहना है, लाइक यू शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम देम, उनसे एकांत की बात करें, फॉरेस्ट जाने की बात नहीं कर रहे। और जो अच्छा एसोसिएशन आपको मिल रहा है, जो आपको एनकरेज करते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, राइट, जो आपको भगवान को समझने के लिए हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों का एसोसिएशन करना, इनको होल्ड करके रखना है, बाकी सबको जो है छोड़ना है, दिस इज कॉल्ड एकांत, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल, ओके, जन समूह से विलग, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ डिटैचमेंट का मतलब क्या है, कि हम लोग बहुत ज्यादा, यू सी, हम लोगों में एक नेचर है हमारा कि हम लोगों को दूसरे के काम में भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि अरे ये क्या कर रहा है, राइट, वो लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो ये कर रहा हूँ, राइट, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रही है, इन्हों क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरा स्कूल का फ्रेंड क्या कर रहा है इस टाइम, यू सी, वी हैव सो मच क्यूरियोसिटी इन एवरीथिंग, राइट। तो ये नहीं करना है, ये वो बता रहे हैं, राइट। हम लोग कहाँ पे खड़े, सी, हम लोगों का एक पिन पॉइंटिंग नेचर है डियर डिवोटीज, हम ना अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहते हैं,
राइट. सो विल डिस्कस दैट आगे भी, बट वी सी वी हैव अ कंट्रोलिंग नेचर, राइट. हम सब चाह रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, अच्छा ये इसने ऐसा क्यों किया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था इसको, राइट. सो वी आर ऑलवेज इंटरफेयरिंग इन समबडी एल्सेस लाइफ आल्सो. हम लोग बहुत इंटरेस्टेड भी रहते हैं इन सब चीजों में. सो ऐसा नहीं करना है. सो हमको ये देखना है वेयर डू वी स्टैंड, राइट, कि हम लोग आगे वालों को पॉइंट आउट करें कि ये ऐसा कर रहा है, ये कम्युनिटी ऐसा कर रहा है, ये कम्युनिटी ऐसा कर रहा है. आप उन लोगों को पॉइंट आउट करके आप कहाँ किस लेवल पे है ये देखिए. आपको समझ में आ रही है बात, यस और नो, राइट. या सो वी आर सेइंग कि हम किसी को पॉइंट आउट करने का जरूरत, उनको जो करना है वो कीजिए, राइट. वी विल फोकस ऑन आवरसेल्व्स, वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हैं अभी, राइट. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ये सब हमको जो है, दिस इज अ श्लोका व्हिच वी शुड इंप्लीमेंट इन आवर लाइफ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास दीस फोर आर. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, ओके, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, राइट. So spiritual okay, there is some message I did not see. Very well said. Okay, yes, thank you Mataji. It is all Srila Prabhupada mercy on us that we are able to understand it. It is so deep, right? Like that. So ये वो बता रहे हैं. Now लास्ट क्या था, आत्म साक्षात्कार की खोज. अब जो हम सब ये एंटेंगलमेंट में फंस जाते हैं, इससे बाहर निकलो डियर डिवोटीज, ऐसे बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद हम सबको, राइट. ड्यूटीज एग्जीक्यूट करो और अपने पाथ पे भी चलो, राइट. सेल्फ रियलाइजेशन का जो पाथ है उस पे चलना है. अब एंड में क्या बोल रहे हैं, सब क्वालिटीज जो है हमको अभी जैसे वी विल सी वन एग्जांपल नाउ, हम लोग एग्जांपल से इसको समझेंगे. ओके, भगवान ने क्या बोला, जो ये क्वालिटीज है इन सब के अलावा सब कुछ अज्ञान है. यस और नो, राइट. सो अगर जो अज्ञान है, अगर वो अज्ञान में रहता है तो उसको क्या मिलेगा, उसको ट्रबल मिलेगा, उसको सैडनेस आएगा लाइफ में, राइट. दुखालय उसका जो बढ़ता जाएगा, बिकॉज इस दुखालय अशाश्वतम, अगर जो ये फॉलो नहीं करता है, दैट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा वो बता रहे हैं, राइट. नाउ हमें कभी भी जैसे हमारे लाइफ में हमको कोई भी कार्य करना होता है, वी हैव टू सी वेदर इट इज बेनिफिशियल और इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस. जो भी कार्य हमको करना है, इट कैन बी एनीथिंग ऑन अ पर्सनल लेवल आल्सो, राइट. हम लोग को ऐसा नहीं, बट यू सी कलयुग का क्या होता है, कलयुग का थिंकिंग कैसा होता है. यू सी नाइकी का ब्रांड मालूम है, शू ब्रांड, राइट. नाइकी का टैगलाइन मालूम है किसी को, टैगलाइन क्या है? यस, शिवांशु प्रभु अनम्यूट. यस, क्या है टैगलाइन? just do it. You see, ये हम लोगों का कलयुग ऐसे इंस्पायर करते हैं, just do it, जो करना है just do it, right? Thank you प्रभु. So this is wrong, right? जो ये just do it की बात हो रही है, this is not correct, right? So हम लोग रेफरेंस के लिए इसको समझ रहे हैं, right? So यहाँ पे जो है कोई भी कार्य करने से पहले we have to think, is it beneficial? क्या हमारे भौतिक जीवन के लिए सही है, स्पिरिचुअल जीवन के लिए सही है, ये इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू एनालाइज, राइट. जैसे दुर्योधन भी जब युद्ध में, अर्जुन भी जब युद्ध भूमि में आए थे, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वो स्कैन कर रहे थे, राइट. क्यों वो स्कैन कर रहे थे, क्यों वो रथ आगे लाने के लिए बोल रहे थे, कि देखना चाहते थे कि युद्ध भूमि में जो है कितने लोग हैं, राइट. एस्टिमेशन लगाने के लिए कि आगे का मिलिट्री स्ट्रेंथ कितना है. आप लोग को याद है ये चीज? That's why Arjuna came. He was estimating everything. So similarly, हमको जो है जो भी कार्य हम करते हैं, ऐसा नहीं कि चलो ये किसी ने बोल दिया just do it. No, we have to think कि material life के लिए ठीक है ये चीज, spiritual life के लिए ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो क्या कर सकते हैं, what can be done, कैसे हम improve कर सकते हैं, ये हमें समझना है, राइट. अब हम थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे इन सब क्वालिटीज को लेकर. जैसे गोल्ड और पीतल है. ओके, पीतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई डोंट रिमेम्बर. brass. Okay, yes, okay. गोल्ड और पीतल की बात. अब हमारा भौतिक जगत कैसा है डियर डिवोटीज, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस पे चले जाते हैं, कि जजमेंटल हो जाते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस पे, दैट ये पर्सन अच्छा है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, राइट. यू सी, जिसके पास कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में, ऑफिसेस में, जिसके पास बहुत, या पड़ोसियों के पास बड़ा गाड़ी है, बड़ा घर है, राइट, सक्सेसफुल है, राइट, देन ही मस्ट बी लिविंग अ गुड लाइफ, ही मस्ट बी अ गुड पर्सन, राइट. उसका ऐसे हम लोग कंक्लूजन पे उतर आते हैं एक्सटर्नल क्वालिटीज पे. बट हमारे शिक्षा गुरु ऐसे बोलते हैं दैट इट इज नॉट एक्सटर्नल क्वालिटीज दैट वी हैव टू सी, ये क्वालिटीज है या नहीं, इसकी बात पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये इंसान अच्छा है नहीं है. गोल्ड और पीतल का एग्जाम्पल, राइट. देखने में दोनों येलो कलर में ही रहते हैं, गोल्डन उनका कलर सिमिलर रहता है, लेकिन उनका क्वालिटी हमको मालूम पड़ता है कि 24 कैरेट गोल्ड है या नहीं है, राइट. हम गोल्ड किस बेसिस पे खरीदते हैं? रंग के ऊपर नहीं खरीदते. Yes or no?
आप जब गोल्ड की शॉपिंग करने जाते हैं, आप देखते हैं कि क्वालिटी वाइज कौन सा अच्छा है, डिजाइन एंड एवरीथिंग विल कम सेकेंडरी, कितने हीरे जवाहरात है उसमें, दैट इज सेकेंडरी, बट इज इट गोल्ड खरीदने के लिए हम पीतल की शॉप में नहीं जाते, ये वो बता रहे हैं. सो वी सी द क्वालिटी. सिमिलरली एक पर्सन में भी हमको क्वालिटीज दिखनी चाहिए, देन वी कैन डिसाइड, ऐसा वो बता रहे हैं. ओके लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइक आप लोग मुझे एग्जांपल्स दीजिए अनम्यूट करके फटाफट कि हमारे रोल मॉडल्स कौन होते हैं. लाइक यूजुअली जनरली बात करते हैं, हमारे रोल मॉडल्स कौन होते हैं आजकल के जनरेशन में, बच्चों के रोल मॉडल सब लोग. हु आर देयर एग्जांपल्स? Sport persons, actors. वेरी गुड, यस. सो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, सिने एक्टर्स होते हैं, राइट. अब आप लोग मुझे बताइए कैसी होती है इनकी लाइफ, राइट. ऊपर ऊपर से वेरी नाइस सक्सेसफुल होती है, और इंटरनली क्या है इनकी लाइफ, राइट. खोखली जिंदगी है, राइट. दे हैव एवरीथिंग, राइट. व्हाई डू वी सी मेनी सिने एक्टर्स कमिटिंग सुसाइड, राइट. भागते रहते हैं वो लोग, कितना भी सक्सेस मिला तो कोई ना कोई उनको पीछे से आएगा, वो डॉच करेगा, उनका करियर जो है खत्म होने वाला है, राइट. और वो भागते रहते हैं पूरे लाइफ. यस और नो? दे आर डिप्लीटेड सोल्स. माता जी, यस, प्रॉमी माता जी कह रहे हैं, यस. उनका लाइफ ऐसा ही है, दिखने में बहुत अच्छा है, लाइक यू नो पीतल. ओके पीतल का हमने एग्जांपल इसीलिए लिया कि हम लोग ऐसे लोगों को सिने एक्टर्स को वी थिंक दे आर रोल मॉडल्स, बट क्या करते हैं वो लोग फिर आफ्टर द स्क्रीन दे टेक ड्रग्स, दे टेक अल्कोहल. उनको उनके बिना तो चलता ही नहीं. देयर वेरी फ्यू एक्टर्स लाइक मे बी अक्षय कुमार एंड एवरीबॉडी, लाइक दे डोंट टेक इट, राइट. बट देयर लाइफस्टाइल इज मिजरेबल, राइट. ऐसा हम लोग बता रहे हैं. यार हम लोग ऐसे जज नहीं करना है कि हाँ इसका लाइफस्टाइल अच्छा है, बहुत गुड लुकिंग है, देन ही मस्ट बी वेरी नाइस. नो, यू सी द क्वालिटी, व्हाट क्वालिटी ही हैज, क्या उसके मॉरल वैल्यूज है, कैसे चीजों में वो इंटरेस्टेड है, राइट. लड़कियां घुमाने में इंटरेस्टेड है, राइट. या यू नो ही सीइंग वुमेन एज अ वेरी नाइस थिंग, राइट. वो रिस्पेक्ट कर रहा है सबका, माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट. कैसे हैबिट्स में इन्वॉल्व है, किन चीजों पे डिपेंडेंट रहने पड़ता है, वीकेंड कैसे स्पेंड कर रहा है, राइट. वीकेंड पे वो क्या करता है, भगवत गीता करता है, डिस्को जाता है, ऑल दैट वी हैव टू सी. हाउ इज ही यूटिलाइजिंग हिज टाइम, मंदिर जा रहा है या इज यूटिलाइजिंग इट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, दैट डिसाइड्स कि कैसा इंसान होना चाहिए, ये हम बता रहे हैं. सो एसोसिएशन, जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं, आपने नोटिस किया होगा शुरुआत से लेके हम बोल रहे हैं कि एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति. मैंने लेक्चर में सुना था प्रभु जी के, दैट एसोसिएशन इज नॉट बाय बॉडी, ओके, इट इज बाय माइंड. ओके हम माइंड से एसोसिएशन लेते हैं. कैसे? जैसे हम बच्चे को देखते हैं, आजकल के बच्चे दे आर ऑलवेज ऑन टेलीविजन. इतना छोटा सा बच्चा है, ही इज ऑलवेज वांट्स टेलीविजन. एंड आपने देखा बच्चे आजकल रिपीट करते हैं, जो वो यूट्यूब पे देखते हैं वही वो फिर टैगलाइन रिपीट करेंगे, वो डायलॉग बोलने लगते हैं, उनको मीनिंग भी नहीं मालूम रहता. एटलीस्ट मेरे घर में तो है ऐसे छोटे छोटे बच्चे, राइट. माय नेबर्स डॉटर्स एंड एवरीथिंग, एवरीवन, वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं. मूवी में कुछ भी बोल रहे हैं तो वो लोग रिसाइट कर रहे हैं. क्यों? उनके माँ बाप ने उनको सेलफोन देके रखा है, उन लोग को बाहर नहीं भेजते. हम एटलीस्ट आपका चाइल्डहुड मुझे मालूम नहीं, मेरे चाइल्डहुड में तो हम लोग कभी भी घर पे नहीं रहते थे. 6 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock स्कूल से आते थे, एंड एवरीवेयर वी यूज्ड टू गो एंड प्ले आउटसाइड. आप सबके साथ आई एम श्योर, क्योंकि हमारा बहुत जनरेशन गैप है आज के जनरेशन से, राइट. क्वालिटी वाइज हम लोगों का चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा, राइट. हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे, ऑल दैट वी यूज्ड टू डू, राइट. भूत का गेम खुद ही बना रहे हैं, गेम्स किचन सेट खेल रहे हैं, ऑल दिस वाज आवर चाइल्डहुड. यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ जनरेशन गैप. आजकल के बच्चे बाहर भी नहीं जाते, पेरेंट्स ही उनको नहीं भेजते, बिकॉज पेरेंट्स उनको फोन पकड़ा देते हैं. इट इज सो एडिक्टिव, इट इज नॉट करेक्ट, ऐसा हमें बता रहे हैं. एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे कि पेड़, ह्यूमिलिटी की जब हम बात करते हैं, हम्बलनेस, विनम्रता, राइट. आप मुझे बताइए, जो पेड़, जैसे आम का पेड़ है, बहुत बड़ा आम का पेड़ है, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं, राइट. ऐसा बोलते हैं जिस पेड़ में ज्यादा फल है वो पेड़ जो है झुका रहता है. यस और नो? भारी हो जाता है ना तो वो झुका रहता है पेड़. लेकिन अब जो पेड़ में फल ही नहीं है वो चौड़ा रहता है एकदम, इज वेरी स्टिफ, राइट. तो ऐसा हमको इसे हमको समझ में आना चाहिए कि जो पेड़ में ज्यादा, जब हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं एंड वी हैव एवरीथिंग इन लाइफ, देन वी हैव टू बिकम मोर हम्बल. झुकना है हमको, ऐसा नहीं कि चौड़े बन के खड़े हैं. जो चौड़ा बन रहा है दैट मींस क्लियरली ही हैज नथिंग इन लाइफ, राइट. ही इज एम्प्टी, लाइक एन एम्प्टी ट्री जिसमें फ्रूट्स नहीं है. ये हमको एग्जाम्पल समझना है, बहुत इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जो मैंने सुना था. नेक्स्ट इज टॉलरेंस. जो हमने टॉलरेंस की बात की, आजकल देखिए आप फैमिलीज की अगर हम बात करेंगे, पहले कैसे होते थे, जॉइंट फैमिलीज नाम की कोई चीज होती थी. आजकल कुछ भी नहीं मालूम है, जॉइंट फैमिलीज बहुत कम हमें देखने मिलता है. आजकल जो है स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिलीज, स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिलीज चल रहे हैं. एक फैमिली में 3, 4, 5 ही लोग रहते हैं, बट वो 5 लोग भी अपने आप में जो है फाइटिंग करते रहते हैं, राइट. एक तो ये कलयुग ही है, इट्स एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी,
ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये लड़ाई करने का ही ये है। सो फैमिलीज में भी जो है न्यूक्लियर फैमिलीज हमारी बन चुकी है, राइट। स्टिल मतलब 4-5 लोगों में क्या प्रॉब्लम है, यू सी, हम प्रैक्टिकली भी अगर सोचेंगे कि 4-5 ही लोग हैं बट फिर भी लड़ते रहते हैं हमेशा, व्हाट इज द इश्यू फैमिली में भी, राइट, बिकॉज देयर इज नो टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है, लाइक दैट मैं अपने हिसाब से करूंगा, मेरे हिसाब से ये सही है, देन आई विल डू इट। माँ ये बोल रही है, बाप ये बोल रहा है अपना, एंड बच्चा ये बोल रहा है, उनके सिस्टर सिबलिंग्स सब अपना अपना करना है। There is no unity in families left. Okay, आगे जाके और ये बिगड़ने वाला है कलयुग में. This also we will experience, right? But because we have this spiritual knowledge, तो हम कोशिश करेंगे हमारी अपनी एटलीस्ट फैमिलीज को हम जो है अच्छे से उनको ये सब सिखा सकेंगे. These moral values and culture we will be able to tolerate. Okay, now जैसे हमने बात की stubbornness, सब जिद्दी है आजकल बहुत. Like parents भी जिद पे है, बच्चे भी जिद पे है, right? Everybody is जिद्दी, right? So, क्यों ये जिद आ रहा है? जैसे बच्चा है, बच्चे को हमने पहले भी डिस्कस किया कि टीवी दे देते हैं, ये बच्चा बोल रहा है कि हम मुझे टीवी का रिमोट दे दो, हाँ ले लो, फोन चाहिए, हाँ ले लो, राइट। वो कुरकुरे के बिना तो उसका फिर लंच भी नहीं जाता है, उसका जो फेवरेट कार्टून है, उसका फेवरेट चॉकलेट है, वो बोल रहा है, बट टॉलरेट करना चाहिए उसको, राइट। बचपन से ही टॉलरेंस नहीं सिखाया है, जो करना है कर लीजिए, राइट। फोन चाहिए ले लो, राइट। गाड़ी चाहिए, बर्थडे पे बड़ा सा डेकोरेशन चाहिए, बड़ी सी केक चाहिए, एवरीथिंग वी आर गिविंग एज टू चिल्ड्रन, दैट इज रॉन्ग, ऐसा वो बोल रहे हैं, ओके। एंड हम लोगों का क्या है कलयुगा में, एवरीथिंग इज लाइक अ न्यू नॉर्मल, राइट। डिवोर्स ज्यादा चल रहा है, बोलते हैं इट्स अ न्यू नॉर्मल, ओके। वुमेन शुड वर्क 24/7 लाइक मैन, न्यू नॉर्मल, ओके। न्यू नॉर्मल के चक्कर में जो गड़बड़ हो रही है, जो धजिया उड़ा के रखा है हमने मॉरल वैल्यूज का, वो कोई नहीं सोच रहा है। यस और नो, यू ऑल अग्री? Yes, so it's all gone, all the culture, all everything is like so corrupted and polluted, right? So हमारे जो ये सब क्वालिटीज है इसकी जो है अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड हो चुका है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो कब हमको ये सब मिलेगा, ये क्वालिटीज कब मिलेगी? When you put भगवान in the center, जिस फैमिली में भगवान ही नहीं है सेंटर में, वो फैमिली में ये सब क्वालिटीज होते ही है। Okay, you must put Krishna in the center and then you see, जब आप मिलके चैंटिंग करेंगे, मिलके आप बुक रीडिंग करेंगे, मिलके आप भगवान का चर्चा करेंगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी और चीज पे फोकस करने का, राइट। वी सी मेनी डिवोटीज फैमिलीज, यू नो, जो इतने अच्छे से रहते हैं। इट्स ओके अगर हमारे फैमिली में सब डिवोटीज नहीं है, बट अगर ऐसा रहता है, एटलीस्ट हम अपने आगे के जनरेशन की बात करेंगे कि वी कैन टीच देम, पुट गॉड इन द सेंटर, पूजा पाठ कीजिए साथ में, यू नो, यू डिस्कस बुक्स, आप ऐसे भगवत गीता क्लासेस, यू नो, वी हैड मेनी ऐसे, हम लोग जब ऑनलाइन क्लासेस करते थे, सो माँ और पिताजी, उनके भाई, everybody in the family used to take classes together. Like you see, sometimes Archana Mataji, she comes with her husband and takes classes, right? You see, families are coming together and they're doing it, right? So like that. So we see families also can come together. ऐसे activities में जब वो involve रहेंगे, तो बाकी time ही नहीं मिलेगा किसी और चीज के। इसके बारे में 1 घंटा और discuss करते हैं, like that. और अगर ये सब नहीं होता है, जिस family में ये सब नहीं होता है, वो सब फिर प्रजल्पा में लगता है। प्रजल्पा is unnecessary talk, राइट। पड़ोसी ने क्या किया, इसके बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं, हम कौन से कपड़े खरीदेंगे, इस पार्टी में क्या पहन के जाएंगे, ये डिस्कशन रहेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका 8 to 12। आगे बढ़ेंगे हम श्लोका नंबर 13 पे। वी हैव अ लॉट टू कवर टुडे। सो 13 नंबर श्लोका, नेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञानावृतम् अनुष्यते अनादि मत् परम ब्रह्म न सत्ता न शदे उच्यते। 13 नंबर श्लोका पे 1 सेकेंड। ओके, क्या बोल रहे हैं? अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है, ये मेरे अधीन है, ये इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। देखिए यहाँ पे अगेन ब्रह्मन का वर्ड, ब्रह्मा का वर्ड यूज हुआ है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। कभी कभी हम हिंदी और इंग्लिश में भी ये देखते हैं कि एक ही वर्ड बहुत जगह यूज हो रहा है, राइट। सो इट हैज डिफरेंट मीनिंग। सो सिचुएशनल ये रहता है। ब्रह्मन का यहाँ ब्रह्मा का यहाँ मतलब है परमात्मा, राइट। एक ब्रह्मा हमने पहले डिस्कस किया था, दैट वाज ब्रह्म ज्योति, राइट। लाइट की हमने बात की। सो सिचुएशनल है ये वर्ड, ऐसा वो बोल रहा है कि एक वर्ड के बहुत अर्थ हो सकते हैं, ये हमें जानना है। श्लोका नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में भी, लाइक इसके बाद का टॉपिक हम बहुत डिटेल में लेंगे। श्लोका नंबर 14, सर्वतः पानिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम अवृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर भी अवस्थित है। ओके, व्याप्त होकर अवस्थित है। सो वही बोल रहे हैं, भगवान सब जगह है भी, नहीं है भी,
राइट, दिस इज वी हैव डिस्कस ना, पहले भी वैदिक लैंग्वेज ऐसा ही होता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या बोल रहे हैं. या क्या बोल रहे हैं, ये सब हाथ पैर इनके सब जगह है, लेकिन फिर ये है भी नहीं. ओके, दैट मीन्स परमात्मा के रूप में है, बट एक्चुअल कृष्णा इज नॉट, हिज एनर्जी इज देयर. ऐसे हमको समझना है कि हम पहले भी डिस्कस किए, चल भी रहे हैं नहीं भी चल रहे, राइट. भगवान जो मूवेबल चीज है उनमें भी है, जैसे हम लोग, और इमूवेबल चीज पत्थर हो इसमें हो सब में भी है. यू सी दिस आर लाइक दो बातें रहती है इन वैदिक लैंग्वेज, बट द मीनिंग विल कम टू वन ओनली, ऐसे वो बता रहे हैं. सो यहाँ पे हम बहुत आचार्य क्या बोलते हैं ये हम डिस्कस करेंगे. ओके, वी विल टेक दिस मोर इन डिटेल, सो यू कैन प्लीज पे अटेंशन. आचार्य क्या बोलते हैं, ये सब जो है बहुत डिफिकल्ट है, राइट. व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस बट वी विल ट्राई. ओके, जैसे हमारा जो ये शरीर है, सोल है, ये क्या सोचता है, राइट, कैसे ये एक्ट कर रहा है, राइट, व्हाट वी आर डूइंग, राइट, ये सब कैसे मालूम पड़ता है. ये वेदांत सूत्र हमने पहले बात किया ना, उसमें प्रोसीजर दिया है, राइट. देयर आर 5 स्टेप्स इस ये एक्ट कैसे होते हैं. सो वी विल राइट इट डाउन. सो फर्स्ट इज अन्नमय, ओके, सेकंड इज प्राणमय, थर्ड इज ज्ञानमय, फोर्थ इज विज्ञानमय, फिफ्थ इज आनंदमय. अन्न, प्राण, ज्ञान, विज्ञान एंड आनंद, 5 स्टेजेस होते हैं ना. अन्नमय की बात करते हैं पहले, लाइक विल टेक इट वेरी ब्रीफली. इस यहाँ पे अन्नमय का मतलब है जो फूड इनटेक. ओके, फूड इनटेक, अन्न समझ में आ रहा है फ्रॉम द वर्ड. अन्न मीन्स फूड इनटेक, राइट. एंड ये ग्रोस बॉडी को सेटिस्फाई करने के लेवल पे, जो हमारा पंच महाभूत है उसको सेटिस्फाई लेवल. ओके, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अन्नमय. प्राणमय मीन्स जैसे हम लोग खाना ले रहे हैं, कैसे वो डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे वो जो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, बॉडी के फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, एनर्जी कैसे आ रही है, राइट. दिस इज ऑल कम्स अंडर प्राणमय, राइट, नोइंग अबाउट प्राणा. ओके, एंड दिस आल्सो इज लाइक वर्किंग फॉर ग्रोस बॉडी, ऐसा वो बता रहे हैं. थर्ड इज ज्ञानमय. ओके, ज्ञानमय इज सटल बॉडी, जो मन, बुद्धि, अहंकार है, माइंड, बॉडी एंड इंटेलिजेंस, दैट वी आर टॉकिंग. जस्ट गिव मी 1 minute. Okay, 1 second. My video is not turning on. Okay, yes. So third is ज्ञानमय, that is subtle body, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों की यहाँ पे बात होती है. तो ये अगर ज्ञान की हम इसको हम और डिटेल में चर्चा करेंगे. I'm just giving a surface level. So ये जो ज्ञान वाले स्टेज में जब हम रहते हैं तो ये तलाश करता है पीस का, खुशी की तलाश करता है, रियलाइजेशन की तलाश करता है, एक्चुअल में रियलिटी क्या है ये वो ढूंढता है. और फर्स्ट 2 स्टेजेस में जब हम बॉडी को सेटिस्फाई करते हैं तो वो चलता रहता है, बॉडी को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऑल दैट. तो फर्स्ट 2 स्टेजेस आर ऑलवेज जंपिंग. थर्ड स्टेज में वो पीस में आ जाता है. फोर्थ स्टेज में आत्मा और विज्ञान के स्टेज में ही टॉक्स अबाउट आत्मा एंड परमात्मा. ओके, एंड दैट आल्सो इज अ स्टेज, क्योंकि सटल लेवल पे है, इसको अगेन पीस चाहिए ऐसा. एंड आनंद इज असब की अनुभूति जब होती है, दैट इज आनंदमय. सो जैसे आत्मा की हम इसको अभी डिटेल में चर्चा करते हैं. अब आत्मा अन्नमय लेवल पे जो रहता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि खाना ही सब कुछ है, राइट. ही थिंक्स दैट सर्वाइविंग इज ओनली एवरीथिंग, राइट. उसका मेन गोल होता है कि फूड खाने के लिए जीता हूँ, राइट. ऐसे कुछ लोग सुना होगा आपने, राइट, जीने के लिए खाता हूँ या खाने के लिए जीता हूँ, राइट. तो वो खाने के लिए जीता है, तो दैट इज अन्नमय स्टेज. उनका प्राइमरी स्टेज होता है फूड ही होता है, सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए, तो ही इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन दैट स्टेज. सेकंड इज प्राणमय. ये स्टेज पे जब आते थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है कि सक्सेस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, दुनिया का डेवलपमेंट चाहिए, राइट, अपना खुद का डेवलपमेंट चाहिए, राइट. एंड कंपटीशन लेवल पे रहता है, थोड़ा कंपटीशन कर लेते, प्रमोशन हो गया, बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, राइट, कॉलेज में टॉप करना है. सो दैट पर्सन इज इन दिस प्राणमय स्टेज. ओके, दिस इज सेकंड. ओके, नाउ थर्ड स्टेज में जो हमने माइंड, बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार की बात की, इसमें उसको आत्म साक्षात्कार में इंटरेस्ट रहता है. जैसे आज हम सब इंटरेस्टेड है, राइट, वी आर इंटरेस्टेड, हमको जानना है कि आत्म साक्षात्कार क्या है. वी आर सर्चिंग फॉर समथिंग, हमको बहुत ये टॉपिक इंटरेस्ट लगता है, सो वी आर सर्चिंग फॉर ऑल द आंसर्स. और हम सोचते हैं कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ये सोचना इस ज्ञानमय स्टेज. ओके, फोर्थ स्टेज में उसको रियलाइज होता है अहम ब्रह्मास्मि, राइट. सो अहम ब्रह्मास्मि मीन्स आई एम स्पिरिट सोल, जो हम आजकल ये नेटफ्लिक्स के शोज में देखते हैं, दैट इज नॉट अहम ब्रह्मास्मि. ओके, दैट इज लाइक सम अदर थिंग. ओके, सो दिस इज आई एम स्पिरिट. जब वो ये स्टेज पे आ जाता है, दैट इज अहम ब्रह्मास्मि, आई एम स्पिरिट सोल, उसको ज्ञान हो जाता है. सो अगेन ये सटल बॉडी में होता है. अब क्योंकि ना ये वो इस स्टेज पे आ जाता है कि अब सब कुछ कमा लिया है, सब कुछ है, व्हाट इज नेक्स्ट, इतना ही है क्या लाइफ, राइट. दैट स्टेज इज विज्ञान स्टेज, व्हाट नेक्स्ट, लाइक दैट. नाउ फिफ्थ स्टेज में जब वो आता है, तब वो he is always connected to God,
उसको अब रियलाइज हो जाता है कि नो, देयर इज अल्टीमेट थिंग कॉल्ड गॉड. सो उसको वो कनेक्ट हो जाता है, ये हाईएस्ट स्टेज होता है अगेन, एंड वो उसको मालूम हो जाता है कि मैं जो हूँ भगवान का अंश हूँ, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, राइट. एंड मेरा नेचर है सर्व करना. इस स्टेज पे वो आ जाता है, मेरा पोजीशन क्या है, भगवान के साथ मेरा सेवक का भाव है, राइट. ऐसे वो भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करता है. सो दिस वाज इट. इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगेन पार्ट 2 में. दैट इज he thinks about first stage में, जैसे अन्नमय स्टेज में, he what is the last stage? आनंदमय प्रभु, मीत प्रभु, it is आनंदमय स्टेज. Okay, आनंदमय स्टेज में he is always connected to God, number 1. उसको हाईएस्ट स्टेज है दिस इज. ओके, उसको समझ में आता है क्या नेचर है मेरा, कैसे मैं भगवान को सर्व करूं, मैं भगवान का अंश हूं, ये सब चीजें उसको समझ में आ जाती है. ओके, दैट इज आनंदमय. सो फर्स्ट स्टेज की हम जब बात करते हैं, he is thinking only about body. ओके, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है. आप लोग सब लोग कॉलेज या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं. सो आप लोग मुझे जवाब दीजिए, व्हाई डू वी गो टू कॉलेज? फटाफट, इट्स लाइक अ रैपिड फायर, एनीबॉडी कैन आंसर, अनम्यूट करके. व्हाई डू वी गो टू कॉलेज? जॉब लग जाए, अच्छा करें. ओके, वन पर्सन वन टाइम जॉब बोल रहे हैं. अच्छा, जॉब मिलेगा तो क्या होगा? सोसाइटी में है कि आपकी मार्केट वैल्यू रहेगी इंसान, क्योंकि आज के टाइम पे नो, वन वर्ड शॉर्ट में बताइए, जॉब मिलेगा तो क्या होगा? जिसके पास पैसा है, दुनिया को लगता है Yes. उसके पास सारी खुशियां हैं. ओके, पैसा एंड खुशियां. एक्चुअली माता जी ने, मुझे लगा सबको मैं थोड़ा थोड़ा पूछूंगी, बट शी हैज आंसर्ड. Living respectful life. हाँ, yes. Living respectful life, education से. Yes. Thank you both माता जी, साक्षी माता जी और अर्चना माता जी. So यहाँ पे क्या है, हम लोग जॉब कर रहे हैं. पहले तो हम बचपन में सोचते हैं कि आप चलो 10th कर लिया बस हो गया, फिर सोचते हैं इंटर कर लिया हो गया, फिर डिग्री कर लिया होगा, PhD कर लिया हो गया, राइट. एंड जॉब कर लिया तो खुशी मिलेगी, राइट. ऐसे करते करते वो खत्म ही नहीं होता कभी. वो बचपन से जो पता मस्का लगाया है पेरेंट्स ने कि आप खुशी मिलेगी, दैट इज नॉट देयर, राइट. सो ऐसे हम लोग जो है करते हैं. फिर हमको लगता है जॉब में, तो जॉब वालों को पूछिए जाके कितना खुश है. ठीक है, आपको लगता है 30,000 वाला खुश नहीं है, राइट. 1 लाख वाले को जाके पूछिए, 2 लाख 1 करोड़ कमा रहा है, उसको पूछिए कितना खुश है वो. He is not happy. So ultimately हम कॉलेज जाते हैं कि कहीं ना कहीं खुशी ढूंढ रहे हैं. You see, this is what is happening. So actual में हम चाहते हैं वो 5th स्टेज ही है. You see, चाहते हैं हम वो आनंदमय वाला स्टेज ही है. उसके लिए हम लोग जो है फर्स्ट लेवल पे भी, अगर अन्नमय स्टेज पे भी है, जब वो सिर्फ बॉडी लेवल पे है, ग्रोस बॉडी लेवल पे है, देन ऑल्सो ही इज लाइक फाइंडिंग फॉर हैप्पीनेस. सो ये फर्स्ट स्टेज होता है. सेकंड स्टेज में लाइक जब उसको प्राणमय स्टेज में ही स्टार्ट्स अर्निंग, उसको लगता है कि मटेरियल एंजॉयमेंट सब कुछ है, लाइक दैट. वो हमने पहले कंक्लूजन में आ गए थे, बट अन्नमय स्टेज जहाँ पे वो सोचता है कि दिस इज ऑल एंजॉयमेंट. सेकंड स्टेज में वो काम करने लगता है, दैट अच्छा ठीक है जॉब कर लूंगा, थोड़े पैसे आ जाएंगे, इट इज एंजॉयमेंट. ना थर्ड स्टेज में उसको रियलाइज होता है कि क्यों ये, व्हाट इज दिस लाइफ, ऐसे क्यों है कि कुछ लोग हैप्पी है, कुछ लोग गरीब है, राइट, कुछ लोग अमीर है, राइट. क्यों ऐसा होता है, कुछ लोग सुखी है, कुछ लोग दुखी है, ऐसा क्यों होता है? ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग. उसको ना बहुत ये इंटरेस्ट आता है कि ऐसा क्यों होता है. अरे ये भी इंसान है, इसके भी 2 हाथ 2 पैर है, ये गरीब क्यों है, ये भिक्षा क्यों मांग रहा है, आई एम हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, मेरे से ऊपर भी है. यू सी, ऑल दिस कम्स अंडर ज्ञानमय स्टेज. ये सब मेरे में इंटेलिजेंस है, इसमें इंटेलिजेंस क्यों नहीं है, इट वुड बी अदरवाइज आल्सो. यू सी, ये जब उसको क्वेश्चंस आने लगते हैं मन में, देन ही कम्स टू अ ज्ञान स्टेज, राइट. अब फोर्थ स्टेज में क्या है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं. ओके, दीज आर एक्सपर्ट्स, जो भी ये फील्ड में काम करते हैं, ये इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, दैट इज विज्ञान में, राइट. इनके लिए जैसे मतलब भगवान की यहाँ पे बात हुई है, बट हम इसको ग्रोस लैंग्वेज में समझेंगे, मटीरियल लैंग्वेज में समझेंगे. जैसे बच्चा होता है, बच्चे का जो है हमेशा एक्टिव रहता है, ऑलवेज उसको स्पोर्ट्स खेलना है. अगर बच्चा स्पोर्ट्स में माहिर हो गया, देन ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, he chose a field and he is expert in that. And जैसे हेयर स्टाइलिस्ट होता है, हेयर स्टाइलिस्ट क्या करता है, आप उसके पास हेयर कट ले जाएंगे, आप उसको बोलिए बॉब कट चाहिए या फेदर कट चाहिए, लेयर कट चाहिए, उसको मालूम रहता है कौन से बाल अच्छे हैं, हेल्थी है, बाल नहीं है, फिर वो आपको शैम्पू जबरदस्ती का रेकमेंड करेगा कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ऑल दैट इज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग. So that is hair stylist. Okay, उसको इसी तरीके से ये जो विज्ञान वाले स्टेज में आ जाते हैं, जब उनको मालूम रहता है that he is expert in knowledge, right? तो उसको मालूम रहता है कि सब भगवान ही है. Then he has no other word. उसको मालूम है कि उसका पोजीशन, he will serve. और आपको देखने में दिखेगा कि वो ड्यूटीज एग्जीक्यूट कर रहा है, क्वालिफाइड है, अच्छा वो स्पीकिंग स्किल्स है, बट इंटरनली दे नो दैट ही इज जो है ज्ञानी है, he knows his duties like that. So full knowledge like that. So हम सबके साथ भी ऐसा होता है ना, हमको कुछ चीजें पहनना पसंद है, कुछ चीजें खाना पसंद है, but we are expert, like we want to look good, so we apply some things on our body, right? So यहाँ पे क्यों ये एग्जाम्पल डिस्कस हो रहा है, this is very very important, right? So आचार्य क्या बोल रहे हैं, ये सब बोलने के बाद आचार्य एक लाइन बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट
what is expected. ये एक्सपेरिमेंटिज्म नहीं है. Okay, this is not expertism. Okay, this is जो हम एक्सपर्ट की बात एक्सपर्टिज्म की बात करें कि ये फील्ड में आप अच्छे हैं, ये लुक्स में आप अच्छे हैं, दिस इज नॉट योर एक्सपर्टिज्म. ये आचार्यास बोल रहे हैं. हम लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन इसमें निकाल देते हैं, दैट वी आर डेकोरेटिंग अ डेड बॉडी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, राइट. कि हम पूरे बॉडी को जो है पूरा एंड तक इसको डेकोरेट करने में करते हैं, ऐसा हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं. तो आचार्यास बोलते हैं कि ऐसे में आप अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें. सेव योर टाइम. ओके, आप सोचिए हमारा एक्चुअल काम क्या है, कि क्यों हमें यह शरीर मिला है. जो हमने 84 लाख स्पीशीज, यू ओपन एनीथिंग, यू ओपन एनी ग्रंथ, गुरु नानक, व्हाट इज दैट, पंजाबी का क्या ग्रंथ है, गुरु नानक, नो, गुरु ग्रंथ साहिब. गुरु You ग्रंथ open any scripture, any holy scripture of other religions also, आपको ये 84 lakh species मिलेंगे ही मिलेंगे, even though it is not a religious talk, but even that their books have this 84 lakh species. So why did we get this human body, right? So actually आचार्य क्या बोलते हैं कि हम लोग को ये शरीर इसलिए मिला है क्योंकि आप देखिए 84 लाख स्पीशीज में कोई भी ऐसा स्पीशीज नहीं है जो भगवत गीता पढ़ सकता है, जो आत्म साक्षात्कार की जर्नी पे जा सकता है. यस और नो? कुत्ते को, बिल्ली को हम लोग कुछ भी नहीं समझा सकते हैं, right? We can't train any other species except for human, चाहे वो कितना बड़ा डायनासोर क्यों ना हो या हाथी क्यों ना हो, right? So when we got this human form of life, हम लोग को इसलिए एक ही रीजन की वजह से मिला है. आचार्यास बोल रहे that we should go back to Godhead, right? We should utilize this, and ये कहाँ से हमारा सोर्स है, we should reach that, ऐसे बोल रहे हैं. हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ भूल भाल के, now everything we are forgetting and we are thinking that I am this body, right? हम लोग को सोल का तो कुछ पता नहीं है, राइट? क्या करना है ये भी नहीं पता है. सो फॉरगेटिंग एवरीथिंग, हम लोग पूरा जीवन जो है डेकोरेट कर रहे हैं बॉडी को, हम इसी में चीज में लगे हुए हैं, राइट? हम लोग भूल चुके हैं हम लोग आए क्यों हैं यहाँ पे, किसी को भी याद नहीं, राइट? जब हम ऐसे चीजें डिस्कस करते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, देन वी विल रियलाइज कि हमारा कुछ और भी जर्नी है, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑल माय लाइफ, देयर इज समथिंग एल्स आल्सो, राइट? लाइक दैट. सो वी हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन, राइट? क्यों हम लोग भूल जाते हैं? बिकॉज आप देखिए हमारी क्लास 1 या 1.5 घंटे की होती है मैक्सिमम, राइट? और लेट्स से 2 आवर्स आल्सो. उसके बाद जो 22 आवर्स होते हैं हमारे लाइफ में, वी आर ऑल इन द भौतिक जगत. हम अपने मटेरियल ड्यूटीज एग्जीक्यूट करने में ही रहते हैं. इसीलिए जो हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं बार बार कि हमारा कुछ जर्नी है. फिर वहां खींचते हैं, फिर बैक साइड जा रहे हैं, फिर बैक साइड जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट 24 आवर क्लॉक व्हेन वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ गॉड. ओके, सो क्यों हम आए हैं ये जानना इंपॉर्टेंट है, कि भगवान को पहले जानना है, हमको भगवान के पास वापस जाना है. ये जो जन्म मृत्यु का साइकिल की बात कर रहे हैं, इससे निकलना है. दिस इज व्हाट वी शुड एक्सपर्ट इन. ओके, हमारा एक्सपर्टिज्म जो है बाकी चीजों में नहीं होना चाहिए. ज्ञान को हम मिसयूज जो कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए. जब तक हम स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ेंगे तब तक ये क्वालिटीज कैसे समझ में आएगी. जो 20 क्वालिटीज की बात की हमने, वो स्क्रिप्चर्स इसीलिए होता है कि हम उनको लाइफस्टाइल में डाल सके, ऐसा पर्सन बन सके जिसमें ये सब क्वालिटीज होते हैं, राइट? आप देखिए बड़े बड़े महाराज एंड एवरीथिंग, दे हैव ऑल दीज क्वालिटीज, right? Because they are completely into this, right? There are people who have all these 20 qualities, right? Like that. So इसीलिए हम लोग जब स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, भोग लगाना सीखते हैं, एकादशी पालन करना सीखते हैं. बट हम क्या करते हैं, हम एक जिद्दी बच्चे के जैसे, राइट? जिद्दी बच्चे के जैसे जिद कर रहे हैं. अब बच्चा क्या, जिद्दी बच्चा कैसा होता है, उसके लिए कुछ भी अच्छा बोलो वो एक ही बात पे अड़ा रहता है. तो हम भी वैसे ही करते हैं, राइट? कि ह्यूमन बॉडी मिला है, उसको यूटिलाइज नहीं करके, रियल पर्पस को नहीं समझ के, राइट? हम लोग क्या है, बच्चे की तरह, बच्चा जो जिद करता है स्कूल नहीं जाऊंगा, या तो जिद करेगा, या स्कूल जाके भी वो सिर्फ खेलूंगा, पढ़ाई नहीं करता है, जिद पे रहता है. सिमिलरली हम लोग जिद्दी हो गए, ऐसा बता रहे आचार्य कि अननेसेसरी थिंग्स हमको चाहिए. अननेसेसरी थिंग्स पे पूरा फोकस है, पूरा जीवन पैसा कमाएंगे एंड एवरीथिंग. बट वी हैव डिस्कस्ड सो फार सो मेनी एग्जांपल्स जिससे हमको जो है अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है. सो आचार्य बोल रहे इन सबको छोड़ दो, लीव इट. लाइक डिटैचमेंट की बात हो रही है, नॉट लाइक कंप्लीटली लीव, बट मेंटली इसको लीव कीजिए, डिटैच हो जाइए. आप याद कीजिए आप क्यों आए हैं, व्हाट इज जो पर्पस की बात करते हैं हम लोग, मटेरियल पर्पस तो यही छूट जाएगा. सो व्हाट इज द रियल पर्पस, क्यों मैं यहाँ पे आया हूँ, रिमेंबर दैट. साधना कीजिए, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं. और आगे बोलते हैं कि हमारे पास ना 3 तरीके के रोग होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ डिसीजेस. ओके, फर्स्ट इज प्रोप्राइटरशिप. ओके, सब मेरा है, ऐसा इनका फर्स्ट होता है. सेकंड है एंजॉय करना, मैं यहाँ पे आया हूँ एंजॉय करना. हम लोग बोलते हैं ना #YOLO, यू ओनली लिव वंस, राइट? ऐसा होता है. सो ये हमारा एंजॉयमेंट का ये, इसी में फंसे रहते हैं. थर्ड इज कंट्रोलिंग, राइट? फैमिली हो जाए, हम चाहते हैं फैमिली हमसे कंट्रोल हो, फ्रेंड्स हमसे कंट्रोल हो, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा वो करे, राइट? ऐसा कंट्रोलिंग नेचर हमारे पास, ऑफिस में हम कंट्रोल करना चाहते हैं, इसी लाइक दैट. सो यहाँ पे आचार्य बोल रहे दैट यू शुड लीव ऑल दिस. ये जो रोग है हम लोग को इन तीनों का, इसको छोड़ दीजिए, राइट?
हम लोग के पास सारे फैसिलिटीज दिए गए हैं, सारे स्क्रिप्चर्स है, सारा स्ट्रेंथ है, सारी कैपेबिलिटी है, सारा बुद्धि है, नहीं भी है तो कृष्णा देंगे, ऐसा भी बोला है कृष्ण ने पिछले श्लोकास में, राइट। बस आगे बढ़ो इस जर्नी में, सो डिटर्मिनेशन के साथ हमको दृढ़ सीरियस होना पड़ता है हमको स्पिरिचुअल जर्नीज में। इट इज नॉट कैजुअल मेथड लाइक दैट। ओके, यूटिलाइज द क्षेत्र, जो क्षेत्र मिला है बॉडी, ये अपना डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, लाइक यू कैन यूटिलाइज इट टू कम आउट ऑफ द जन्म मृत्यु जरा व्याधि साइकिल, ये वो बोल रहे हैं, राइट। अकबर बीरबल की एक स्टोरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। एक बार ऐसे हुआ था कि सभा में एक छोटी सी लाइन, आप लोग को शायद सुना होगा आपने, छोटी सी लाइन को ड्रॉ करते हैं, राइट। बोलते हैं कि इस लाइन को जो है इसको मिटाना भी नहीं है, कुछ ऐड भी नहीं करना है, ओके, फिर भी लाइन को जो है बड़ा करना है। किसी को मालूम है? आई थिंक सुधांशु प्रभु नोस दिस स्टोरी, अर्चना माता जी। तो इसको मिटाना भी नहीं है एंड इसको ऐड भी नहीं करना है, अब ये लाइन को बढ़ाना है। अब सब सभा में परेशान हो गए, अब इसको कैसे करेंगे, बोल रहे कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ मिटाना नहीं, हाउ डू वी डू दैट? एनीवन कैन आंसर? अर्चना माता जी और सुधांशु प्रभु, क्या आंसर हो सकता है, कैसे हम लाइन को बढ़ाएंगे? दूसरी लाइन बना दी। यस, सो दैट्स व्हाट ही डिड, दूसरी लाइन बना दिया उसने। अब ये छोटी सी लाइन है, इसको छोड़ के उन्होंने बड़ी लाइन बना दी। अब ये बड़ी लाइन बना दी तो ये लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हो गई, ना रब किया ना ऐड किया। सो दैट, इससे क्या समझ में आता है? इससे हमको हमारे व्हेन वी सी टॉक अबाउट एग्जांपल्स, हम लोग को कैसे वो स्पिरिचुअल जर्नी में यूज होता है, दैट वी शुड थिंक। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आपको छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना है, देन इट विल नॉट हैपन, यू शुड लीव दिस। अगर आपको कुछ बड़ा एक्सपीरियंस करना है, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट बिग लाइन, यू शुड लीव दिस स्मॉल पेटी थिंग्स। ओके, ये वो बोल रहे हैं, ओके, कि आपको फोकस करना है बड़े वाली लाइन पे, कि हमको भगवान के पास वापस जाना है, शरीर के बाद वाली लाइफ। ओके, वी शुड फोकस ऑन दिस वन। अगर इसमें फोकस करना है तो इसको छोड़ना पड़ता है। इसी पे ऐड करेंगे कि इसको कैसे बड़ा करना है, इसको कैसे छोटा करना है, वही रुक जाएंगे, वी विल नॉट कम हियर दिस स्टेज। आप लोग को समझ में आया एग्जाम्पल? यस और नो? सो दैट्स व्हाट। सो अगर हमको बड़े लाइन पे फोकस करना है, ऐसे वो बता रहे हैं अल्टीमेट गोल क्या है। ओके, मे बी ये लाइफ में हो सकता है नहीं होगा, बट मे बी नेक्स्ट लाइफ और नेक्स्ट लाइफ, बट स्टार्टिंग हम कर सकते हैं। एट एनी कॉस्ट हमको मिसयूज नहीं करना है, हमको यूटिलाइज करना है ये बॉडी में। वी आर नॉट सेइंग डोंट एग्जीक्यूट ड्यूटीज, एग्जीक्यूट एवरीथिंग, बिकम द रिचेस्ट पर्सन, बिकम वेरी सक्सेसफुल मटेरियली, बट बी ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, ऐसा हम बोल रहे हैं। ओके, श्लोका नंबर 15 पे चलेंगे। अब आगे के श्लोका वी विल मोस्टली रीड इट, कुछ एक्सप्लेनेशन ही रहेंगे, तो आप लोग सुन सकते हैं। सर्वेन्द्रिया गुणाभाषम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तरच। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र है, मतलब हमारे सबके इंद्रियों के स्तोत्र वही है, फिर भी वो इंद्रियों से रहित है। यहाँ पे क्या मतलब, उनके ऐसा नहीं कि इंद्रियां नहीं है, he does not have material senses, ऐसे वो बोल रहे हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है, like we said, he does not touch the material nature. Okay, वे प्रकृति के गुणों से परे है, beyond the material nature, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है, मतलब वो स्वामी भी वही है, बट वो उनसे टच नहीं होते। whenever he comes also, he comes with a spiritual body, ऐसा। Okay, 16 नंबर श्लोका पे चलेंगे, इंपॉर्टेंट श्लोका है। बहिरंतस्थ भूतानाम आचरम चरमेव च सुखस्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दुरास्थं चान्तिके च तत्। 16 में क्या बोल रहे हैं? परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है, सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है, यद्यपि ये अत्यंत दूर रहते हुए भी हम सबके बहुत निकट है। बहुत दूर भी है बोल रहे हैं, फिर भी निकट है, लाइक दैट। दिस इज वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो फाइन लाइंस होती है ये हमको समझना है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम ट्रूथ जो परम सत्य है, outside this exists outside and inside of all living beings, जैसे हमने बोला मूविंग में भी, अनमूविंग में, चर अचर, इसमें भी सब में है। ये फर्स्ट लाइन, because he is subtle, he is beyond the power of material senses, right? वो हमारी तरह पंच महाभूत की बॉडी नहीं है, सटल बॉडी है उनकी, इसीलिए जो है he is beyond the material senses, हमारे इस सेंसेस से हम उनको नहीं देख सकते। we need to have spiritual eyes to see the spiritual body, this is what they are saying. although far far away, he is also near, मतलब भगवान कहाँ है? गोलोक वृंदावन कहाँ, हमारा सृष्टि के बाहर 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 ऊपर टॉप पे है, फिर भी हम सबके बीच में है। that is why he is भगवान, ऐसे वो बोल रहे हैं, रह के भी दूर, रह के भी पास में है, ऐसा। सो यहाँ पे जैसे एक केक का एग्जाम्पल आता है, बर्थडे पे केक हम कट करते हैं, हम अगर केक कट करेंगे एक पीस, राइट, देन दैट केक कम हो जाता है, राइट, इट इज कम हो गया, उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो गया। भगवान का ऐसा नहीं रहता। एक श्लोका आता है ईशोपनिषद में,
ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णम पूर्ण ऐसा ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमेवाय पूर्णम अवशिष्यते, ऐसा कुछ श्लोका आता है। ओके, सो इस श्लोका में क्या है कि भगवान का, जैसे हमने केक अगर यहाँ निकाल दिया, केक छोटा हो गया, ओके, बट भगवान का ऐसा नहीं होता। भगवान चाहे हम सब में डिवाइडेड है, फिर भी भगवान पूर्ण है, इसका ये मतलब है। मटेरियल कैलकुलेशन के हिसाब से 1 - 1 = 0, राइट। स्पिरिचुअल कैलकुलेशन में 1 - 1 = 1, ऐसा। ओके, दैट भगवान से हम निकल रहे हैं, -4 है, फिर भी ही इज 1, 1 - 1 = 1। ओके, लाइक दैट। सो श्लोका नंबर 17, 18, 19, 20 हम 19 तक हम साथ में करेंगे। Okay, so shloka number 17. Okay, we'll do 17 first. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं एव च स्थितं भूतभृता च तज्ञेयं राशिष्णु प्रभा विष्णु च। 17 में क्या बोल रहे हैं? परमात्मा समस्त इंद्रियों के this not this one, 15. यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होते। Even though he is divided, is undivided, ऐसा। वह एक रूप में स्थित है, he is पूर्ण। ओके, यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, he is a protector, caretaker, well wisher, like that। लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों के संहार करता है और सबों को जन्म भी देते हैं। वही like he is a creator and he is a destroyer, like everything is coming from him, like that we are saying। श्लोका नंबर 18। ज्योतिषम अपि तत् ज्योतिष तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। तो यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं? वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। लाइट है अगर, तो उसका सोर्स वो है। तो भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। He's beyond all the darkness and is unmanifested। Okay, मतलब अंधकार, इसको डार्कनेस बोलो, not that darkness which we see। अंधकार का जो डार्कनेस है उसके परे है। वे ज्ञान है, he is complete knowledge। वे ज्ञेय है, he is the object of knowledge। and ज्ञान के लक्ष्य है, अल्टीमेट नॉलेज का जो डेस्टिनेशन है वो भी भगवान है। वे सबके हृदय में स्थित है, लाइक परमात्मा, ऐसे हम बता रहे हैं। श्लोका नंबर 19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समस्यतः मद्भक्ता एतद् विज्ञानम मद्भावा योपपाद्यते। 19 में क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त की पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जो है सब कुछ मैंने समझा दिया तुम्हें अर्जुन। नाउ ओनली माय डिवोटीज कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ऐसे वो बता रहे हैं। 20 नंबर श्लोका। प्रकृतिं पुरुषं चैव विधि अनादि उभाव अपि विकार्मश्च गुणंश्च चैव विद्धि प्रकृति संभवान। 20 नंबर श्लोका में प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। To be beginningless, अनादि मतलब beginningless। प्रकृति जीव हम सब भी, it's not like our first life or anything। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। The transformations and modes of matter are products of material nature। So ये सब प्रकृति से आता है। जैसे हमने डिस्कस किया ना, पुरुष का मतलब क्या है? आत्मा परमात्मा, मेल, आत्मा परमात्मा। ओके, प्रकृति इज फीमेल, नाम से भी मालूम पड़ रहा है कि इट इज फीमेल, राइट। अभी हम लोग क्या सोचते हैं प्रकृति में रह के? दैट वी आर द कंट्रोलर्स। ओके, फैमिली मेंबर्स की बात अगर हम करेंगे, तो हम लोग 5 लोग फैमिली में होते हैं। पापा सोचते हैं कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं सब घर चला रहा हूँ। मम्मी सोचती है कि मैं सब कुछ काम कर रही हूँ, जो पैसा लाया, रोटी बनाई है, अर्चना माता जी, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं खिला रही हूँ, मैं पोषण कर रही हूँ, मैं नरिशमेंट दे रही हूँ बच्चों को। बच्चा सोचता है कि मैं क्योंकि पैदा हुआ हूँ, मेरे वजह से काम चल रहा है और मैं मेरा जो दिस मुझे चाहिए, मैं जिद करूंगा तो सब आ जाएगा घर पे। भगवान वो सोचता है मैं अपने माँ बाप को कंट्रोल कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ एवरीबॉडी इज थिंकिंग दैट हम सब एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, बट रियलिटी में कोई किसी को कंट्रोल कर ही नहीं रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से जो है आत्मा भी, कितना है आत्मा? वी हैड डिस्कस द साइज ऑफ आत्मा, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, उतना छोटा है आत्मा। फिर भी आत्मा सोचता है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ऐसा सोचते हैं हम लोग इस भौतिक जगत में। वी वांट टू, ये जो भौतिक जगत है इसमें हम लोग जो है लॉर्डशिप, ओके, हम अपना प्रोप्राइटरशिप दिखाना चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरा घर बनता है, नाम आ जाता है मेरा घर, राइट। घर के लिए जमीन कहाँ से आई? आपने बनाया, पिताजी ने बनाया, कहाँ से आया? फ्री में आया जमीन, राइट, लाइक दैट। पानी कहाँ से आया? दैट इज ऑल्सो फ्री, लाइक दैट। सो इतना छोटा होने के बाद भी हम हर जगह पे जो है प्रोप्राइटरशिप, मेरा हस्बैंड, मेरा माँ, मेरा पिता, लाइक एवरीवेयर देयर इज माई, जस्ट बिकॉज आप निकले हैं, पापा तो कहीं से निकले हैं ना, राइट। ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर के फादर है, नहीं मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर के बच्चे हैं,
right, my father, like that also we can tell, no, mere pitaji, mera books, mera class, mera family, like everything इतना insignificant होने के बाद भी हर चीज वो मैं को ढूंढता है, ऐसे वो बोल रहा है. So reality में ना तो बच्चा कंट्रोल कर रहा है फैमिली को, ना बीवी कंट्रोल हो रही है हस्बैंड से, उनको जो करना है वही कर रहा है, right? Nobody who is listening, right? कौन सुन रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं. जिसको जो करना है वही करता है, रियलिटी में कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता. हम सुनते हैं ना, like people in a stand they say do whatever you do you want to do man, like right, हम लोग सुनते हैं ये सब. So it is like that, हमारे साथ ऐसे होता है, ये बोल रहे हैं. आप जो हम ये अच्छी वाली एक्टिंग तो हम करते हैं, ओबीडियंट है, चलो माँ बाप की बात सुन रहे हैं, सब एक्टिंग है, कोई कुछ नहीं कंट्रोल कर रहा है, जस्ट एक्टिंग, ऐसे वो बोल रहे हैं. रियलिटी में नो वन इज कंट्रोलिंग, कंट्रोलर एक ही है, ये हमको बता रहे हैं. हम सब भ्रमित है ना, हम लोग को लगता है मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं अपने करियर को कंट्रोल कर रहा हूँ. वी आर थिंकिंग लाइक दैट. एक नेचुरल कैलामिटी आ गया तो सबका जो है, जैसे हमने वो एग्जांपल डिस्कस किया था अमेरिका में, जब बाढ़ आई थी, जॉर्ज बुश कर्चिफ निकाल के रो रहे थे, धज्जियां उड़ गई थी उस टाइम पे, जब जो है सब कुछ तहस नहस हो गया. ऐसा कभी भी हो सकता है, राइट? आजकल तो एवरीवेयर रोड पे जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा, और रोड पे नहीं तो आसमान से भी प्लेन गिरने लगते हैं आजकल. तो यू सी everywhere that is like that. There was a very bad incident that has happened. You see, nowhere it is safe, right? अगर कुछ नहीं तो फिर दूसरा देश ही आ जाता है हमला करने के लिए. That we are seeing in Ukraine. No, nothing is safe. तो हमारा कोई कंट्रोलरशिप नहीं है, तो we should not be in that illusion कि हम सब कंट्रोलर्स हैं. आत्मा भी यही सोच रहा है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट. परमात्मा कंट्रोल कर रहे हैं, दैट वी आर डिस्कसिंग, राइट? क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? ना तो हम माइंड कंट्रोल कर सक रहे हैं, ना हम इंटेलिजेंस कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम अपना अहंकार कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? ये जो है बाहरी हम बात कर रहे हैं, बाहरी चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. अंदर की चीजें, फूड, डाइजेशन, राइट? जो ब्लड पंप हो रहा है, क्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं? जो गैसेस फॉर्म होती है, गैस्ट्रिक जूसेस, उसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैन वी कंट्रोल दैट? वी कैन नॉट कंट्रोल. कुछ नॉलेज भी नहीं है उन सब चीजों के बारे में. अगर किसी को पूछेंगे सब ऑटोमेटिक है जी, it will come to that conclusion. But when you put God, then you'll have a meaning that there is a controller to all of these things. Still we think that you are controllers, but real controller is Paramatma. ये हमने डिस्कस किया. Moving on, श्लोका नंबर 20 हो गया है. 20 पे चलेंगे. प्रकृतिम पुरुषम चैव विधि अनादि उभा अविहि विक्रमश्च गुणमश्चैव विधि प्रकृति संभवान. प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना, उनका विकार तथा गुण प्रकृति जन है. We have already discussed that they are beginningless. Okay, 21 पे हम चलेंगे. So from here we will just read it out. कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुःखानां भोक्तारत्व हेतु रुच्यते. 21. Okay. प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा परिमाणों यानी कि कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव इस संसार के विविध सुख और दुख को भोग के कारण कहा जाता है. ये हमने पहले डिस्कस किया था कि हमारे जो कॉज एंड इफेक्ट है वो भगवान नहीं है, वो हम ही है. बट इन सब के जो कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, दैट इज लेवल अप, ऊपर के लेवल में भगवान है, राइट? सो जो सफरिंग, जैसे अभी एक बेड है, राइट? बेड के लिए लकड़ी चाहिए, राइट? सो हम पहले पेड़ को काटना पड़ता है, उसका इफेक्ट होता है कि हमारे पास टेबल बन रहा है या फिर लकड़ी बन रही है. सिमिलरली हमारा सफरिंग और एंजॉयमेंट हमारे कर्मा के वजह से होता है. इट इज नॉट गॉड, राइट? सोर्स इज God, but जो हम कट कर रहे हैं हमारे कर्मास, that is only we are getting it as our own. जो हम सिनेरियोस होते हैं, सुख दुख, ये सब इससे आते हैं, राइट? सो किसी और से ये दुख आया है, भगवान इसने मुझे दुखी किया है, राइट? इसने मुझे हर्ट किया है, मेरे इमोशंस के साथ खेला है, राइट? और भगवान के वजह से ये हुआ, ये सब सोचना ये अज्ञान है. ओके सुधांशु प्रभु, आई थिंक कल वी हैव डिस्कस्ड, राइट? ऑल दिस कमिंग फ्रॉम एनी अदर थिंग्स, दिस इज अज्ञान, राइट? ज्ञानी क्या सोचता है, अरे ये मेरे ही कर्म फल है, अगर कोई मेरे साथ ऐसे बिहेव करे तो इट मस्ट हैव बीन माय ओन डीड्स. पास्ट लाइफ में हो सकता है ये मेरे पिताजी रहे होंगे, मैं इनके पिताजी रहा होऊंगा, मैंने किया होगा उनके साथ ऐसे, राइट? दिस इज प्रीवियस लाइफ में हम ऐसा सोचते, दिस इज ज्ञान, राइट? व्हाट हैपेंस डियर डिवोटीज, क्या होता है हम अगर हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमें कम दुख लगता है, राइट? हमको पता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, मैंने कुछ नहीं किया ना, मैंने तो अच्छा ही रहा हूँ, राइट? ज्ञानी जब होता है, इसलिए हम ज्ञान होना जरूरी है इन सब चीजों का. वी विल नॉट बी बिविल्डर्ड कि फैमिली ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, फ्रेंड्स ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, मैंने कुछ कर्म किए होंगे तभी कर रहा है, तो दुख कम लगता है ये, राइट? सो व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी ओनली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वी विल नॉट थिंक दैट टाइम. हमको मालूम है अगर हो रहा है तो चलने दीजिए, तो मेरे कर्म होंगे, लाइक दैट वी विल लीव. 22, 23, 24 साथ में करेंगे. पुरुषा प्रकृति स्तोतोस्ति भूंके प्रकृति जन गुणान
कर्माणाम गुणसंगोस्य सत् असत् योनि जन्मसु. We will wind up in 10 minutes. Okay. So 22. इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है. ओके, मतलब 3 गुणास में रहता है हमेशा, उसी को वो एंजॉयमेंट समझ, इसको भोगते रहता है. राइट. सो ही विल एंजॉय ऑल ऑफ इट. यस. एंड उस प्रकृति के साथ उनकी संगति के कारण है. क्यों ये ऐसा सोचता है? बिकॉज ही इज इन द मोड, क्लचेस में है, तो जो बंदी बन चुका है मोड ऑफ नेचर में. आगे चैप्टर में हम 3 मोड्स ऑफ नेचर, बहुत बढ़िया चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे. हमको समझ में आएगा व्हाई वी बिहेव, हाउ वी बिहेव. राइट. इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनिया मिलती रहती है. ओके. इस तरीके से जो है अपने कर्म फलों की वजह से कभी कुत्ते का शरीर, कभी बिल्ली का, कभी हाथी का, कभी डायनासोर का, या फिर मिसिल या मिस वर्ल्ड भी मिल सकता है, ऐसे वो बोल रहे हैं. 23 पे हम चलेंगे. उपाद्रष्टु नामत मचा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमत्ते चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः. तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है. एक्चुअली इज द रियल एंजॉयर. हम नहीं है सफर. क्यों हम सफर करेंगे? क्यों हम एंजॉय करेंगे? परमात्मा है सबके लिए. लाइक दैट वी शुड नॉट एंजॉय, वी शुड नॉट सफर आल्सो. राइट. परम स्वामी है, वो ईश्वर है, वो परम स्वामी है, साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और परमात्मा कहलाता है. ही विल गाइड अस, ही विल इंस्पायर अस, ऐसे वो बोल रहे हैं. 24. ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सभ्यो अभिजायते. जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया में संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, who has a knowledge of all what we have discussed so far, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है. उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, जहां पर उसका पूर्ण जन्म नहीं, यहाँ पर उसका पूर्ण जन्म नहीं होगा. सो हम सबके लिए ये श्लोक है कि ज्ञान हमें जब रहता है, सो हमको मुक्ति मिलती है. क्यों मुक्ति मिलती है? बिकॉज वी हैव ज्ञान. राइट. ज्ञान, हम अगर हम सबको ये सब चीजें मालूम है, ज्ञान की वजह से क्या होगा? हम अटैच नहीं रहेंगे. ओके. सो ओके सुधांशु प्रभु, व्हेन वी हैव ऑल द नॉलेज वी विल नॉट गेट अटैच्ड टू एनीथिंग. ओके. वी विल रिमेंबर दैट वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. ओके. सो इसके लिए ज्ञान होना चाहिए. डेफिनेटली मुक्ति मिलेगी. वी ऑल ऑफ अस विल गेट इट. Maybe not this life, or maybe this life also, but we will get it. Right? One day will come where everything will get over and we'll be happy and in bliss with Krishna, like that. So 25, 26, 25 से 30 तक हम साथ में करेंगे. 24 हमने कर लिया है. Okay, 1 second. 24 we did it. Yes. 25 पे हम चलेंगे. ध्यायनेत्मानि पश्चाति केचित् आत्मनमात्मना अन्य संख्ये योगेन कर्म योगेन चापरे. जो व्यक्ति प्रकृति, जीव, कुछ लोग परमात्मा के ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान की अनुशीलता द्वारा कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं. सो डिफरेंट बता रहे. अभी तक जो भी डिस्कस किया, कोई मेडिटेशन के थ्रू पहुंचता है, कोई ज्ञान योग के थ्रू पहुंचता है, कोई भक्ति योग के थ्रू पहुंचता है, कोई कर्म फल को त्याग करके पहुंचता है. ऐसा वो श्लोक में बता रहे हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. 26. अन्येत्वा एवं अजन्ताः श्रुत्वान् एवेय उपासते ते अपि चैता तरन्ति एव मृत्युं सृष्टि परायणः. ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते हैं. ओके. दे आर नॉट कन्वर्सेंट. और अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं. जो ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि के पथ को पार कर जाते हैं. क्योंकि भक्ति योगी इसकी बात हो रही है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज को तलाश में एक गुरु को ढूंढते हैं, आध्यात्मिक जीवन समझते हैं और यहाँ से निकल के then they will come out of this cycle also, ऐसे वो बता रहे हैं. श्लोका नंबर 27 पे हम चलेंगे. यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतस्सभा. ये हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, या जान लो कि 4 चर तथा अचर, मूवेबल इमूवेबल, जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है. इट इज ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो हमने फील्ड ऑफ एक्टिविटीज बात किया है, और जो नोअर ऑफ फील्ड है, सोल और बॉडी, इनका एक कॉम्बिनेशन है. सो डोंट गेट अफेक्टेड, ऐसे बोल रहे हैं. 28. समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठानां परमेश्वरं अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, यह पश्यति स पश्यति,
जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वो वास्तव में देखता है। अगेन चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं कि हम जब सब लोगों को जान लेते हैं कि नहीं इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भगवान है, सबको एक दृष्टि के समान देखते हैं, तब वो ज्ञानी कहलाता है, राइट। उनको मालूम है ये जो नश्वर शरीर बोल रहे हैं, हमको मालूम है जो भी हमारे क्लेश आ रहे हैं शरीर के, जो भी अटैचमेंट्स की वजह से जो दुख आ रहे हैं हमको, दिस इज ऑल टेम्पररी, राइट। एक्चुअल में रियलिटी क्या है, परमानेंट क्या है, दिस इज सोल, माई सोल, योर सोल, एवरीबॉडी सोल, ये वो बता रहे हैं रिविजन की तरह। ओके 29 पे हम चलेंगे। समं पश्यामि सर्वत्र समाविष्टम ईश्वरम न हिंसति आत्मनात्मात्मा ततो यति परम गतिम। दिस इज 29। ओके, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है, ओके, डिग्रेड नहीं करता, अपने आप को तकलीफ नहीं देता ये सोच सोच के कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। ऐसे वो ट्रांसेंडेंटल, आध्यात्मिक का प्रोग्रेस है, ट्रांसेंडेंटल डेस्टिनेशन को अचीव करता है, क्योंकि वो ये नहीं सोचता है कि क्यों मुझे दुख आ रहा है, एंड ही विल नॉट डिग्रेड हिज ओन माइंड, ऐसे वो बोल रहे हैं, अपने मन को वो और तकलीफ नहीं देता है। he will come back strong। 30th श्लोका। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तृं स पश्यति। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से ही हुआ है, और जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, वह यथार्थ में देखता है। सो इट इज ऑल बॉडीली एक्टिविटीज, जो भी हो रहा है ये मटेरियल नेचर की वजह से इन्फ्लुएंस होगी, ये सब हो रहा है, बट सोल का कुछ लेना देना नहीं है। सोल सिर्फ एक जर्नी है उसका, स्पिरिचुअल जर्नी, उसमें वो रहता है, ये बता रहा है। 31 लास्ट 2 श्लोकास, लास्ट 5 श्लोकास, सो विल जस्ट रीड इट आउट। यदा भूता पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तदा एता च विशारात् विस्तरामम्, ओके, विस्तारम ब्रह्म संपाद्यते तदा। 31 में क्या बोल रहे हैं, यह विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, और तो वो ब्रह्म बोध को प्राप्त करता है। भगवान की बात कर रहे हैं, ब्रह्म बोध यानी कि ब्रह्मांड कंसेप्शन। ओके, इसकी जो डिफरेंट मटेरियल बॉडीज है, ये सब जो है भगवान के ही है, सब डिफरेंट जीवों को देखता है, सब भगवान के हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। एंड वो उसको समझ में आता है कि क्यों ऐसा नेचर में सब डिफरेंट स्पीशीज है, ही नोस द कॉन्सेप्ट, राइट, लाइक दैट। 32 पे हम चलेंगे, विल जस्ट रीड द ट्रांसलेशन। शाश्वत हृष्ट संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। सोल का सिम्टम्स हमने डिस्कस किया था चैप्टर 2 में। है अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना ही लिप्त होता है। तो इट्स ऑल बॉडी का एंगेजमेंट से आत्मा कुछ भी नहीं करता है। अगेन रिपीटेडली हमको ये बताया जा रहा है। 33 यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहे हैं 33 में कि जैसे आकाश जो है, कभी भी अगर आप आकाश को देखेंगे तो हमेशा वो है, आकाश ऑलवेज है, बट क्या कभी आत्मा की आकाश किसी में मिक्स होता है क्या? दैट ही विल नॉट मिक्स। हवा भी चलती है, कुछ भी पेड़ पौधे आ रहे, सब में मिक्स हो रहा है, बट अगेन इट इज कमिंग बैक टू इट्स ओन पोजीशन, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही डज नॉट मिक्स, राइट। जैसे हवा में जो है कभी पानी भी आता है, कभी मिट्टी भी आता है, राइट, कभी यू नो एवरीथिंग, मड है या पानी है या स्टूल है, एवरीथिंग मिक्सेस इन एयर एंड वाटर, राइट, बट दे स्टिल आर नॉट अफेक्टेड। उसी तरीके से जो है जो ज्ञानी व्यक्ति है, कितने भी प्रॉब्लम्स आए उसके लाइफ में, नो मैटर हाउ मेनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज उसके पास ज्ञान है, he has every knowledge, then he is not affected। ओके, ये वो बता रहे, he is not disturbed, भ्रमित नहीं हो जाता कि उसको मालूम है बॉडी लेवल पे कुछ भी हो रहा है, सब टेम्पररी है, दुख भी है, सुख भी है, बट सोल लेवल का परमानेंट है ये। सो लास्ट बट वन श्लोका, लास्ट बट वन श्लोका। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि कैसे हम सब ऊपर से नीचे तक चेतना में है। आप अपने आप को पिंच कीजिए, आप कहीं पे भी बॉडी पे पिंच कीजिए, गाल पे, फेस पे, हाथ पे, पैर पे, आपको पिंच फील होगा। ओके, डेड बॉडी पे आप कीजिए, नहीं फील होगा, बिकॉज वो चेतना नहीं है उसमें, इट डज नॉट हैव कॉन्शियसनेस, वी आर कॉन्शियस, ऐसे वो बता रहे हैं। लास्ट श्लोका फॉर द क्लास 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषः
भूता प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति के विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। सो जिसको सब मालूम है, अब हम इतना सब कुछ सीख लिए कि क्यों हो रहा है, व्हाई सो मेनी स्पीशीज, व्हाई सो मेनी अटैचमेंट्स, व्हाई सुख दुख, राइट, बॉडी क्या है, सोल क्या है, हम लोग का टेम्पररी है सब कुछ, राइट, कर्म कैसे करना है, एवरीथिंग जिसको मालूम है, अभी कौन सोर्स है, कैसे यूनिवर्स बन रहा है, एवरी नॉलेज, ये सब जिसको मालूम है, भव बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ये सब के सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं। एंड कंक्लूजन में क्या है, अगेन हमको बता रहे कि अल्टीमेट गोल तक हम पहुंचेंगे। रिमाइंडर्स मिल रहे हैं हमको, राइट, घड़ी सेट करके रखा है, अलार्म बज रहे हैं हर चैप्टर में कि नहीं अब उठो, अब उठो, अब कम बैक, अब कम बैक, कम बैक, कम बैक, ऐसे बोल के रिमाइंडर हमें आ रहे हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। हम जिसको नॉलेज नहीं होता उनको लगता है कि हॉलीडे में है, बड़ा घर लूंगा, बड़ा कार लूंगा, ब्रांडेड चीजें लूंगा, राइट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, ब्रांडेड लो या 200 की घड़ी लो, 2 लाख की घड़ी लो, टाइम वही चलता है, टाइम नहीं बदलता है, लाइक दैट। सो वॉट एवर मटीरियल आप सक्सेस पा लो, दैट विल नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन, और आपको उसमें फंसाएगा। BMW ये वर्जन लिया है, iPhone 13 लिया है, 14 लीजिए, 14 क्या 15 लीजिए, इट विल नॉट एंड, दैट साइकिल विल नॉट एंड। सो अल्टीमेट गोल अगेन कृष्ण हमको टिंग करके बजा रहे हैं कि कम बैक, ओके, नाउ यू कम, नाउ यू कम, नाउ यू कम। ये रिमाइंडर बच चुका है इस चैप्टर में भी। कंक्लूजन में सब ज्ञान इतना देखो कैसे बताते हैं श्री कृष्ण का, लाइक हैव यू सीन हाउ क्लेवरली ही टेल्स एवरी नॉलेज, सब कुछ बता के एंड में बोल रहा है नाउ यू कम बैक। ओके, सो अगेन ही इज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ अस कि हम अपने आध्यात्म जीवन में आगे बढ़े। So that was थोड़ा एक्सटेंड हो गया क्लास, but I hope because everybody is present, so I don't have any problem. I was happy. तो जिन्होंने मिस किया प्लीज रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। So thank you so much. That was all my time for today. हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। Now we'll start with questions. Sorry, मैं भूल गई. If you have any questions, please ask. अर्चना माता जी, yes, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। पिछली बार जब मैंने क्लास अटेंड किया था, प्रभु जी ने कहा था कि हनुमान जी के ऊपर वो एक दिन क्लास लेना चाहेंगे और लेंगे। अब उन्होंने लिया या मैंने मिस किया मुझे नहीं पता, तो मैं जानना चाहती थी। नहीं, अभी लिया नहीं है, ऑफ कोर्स आपको बताएंगे, लाइक सब जगह स्टेटस में। हनुमान जयंती, इसलिए मुझे वो बात याद आ गई उनकी। हाँ, एक्चुअली कल हनुमान जयंती है शायद ना, कल आज है मैम, आज है। ओके, 16 years। तो एक्चुअली आज हम लोग का संकीर्तन चलेगा, लाइक फ्रॉम हनुमान टेम्पल टू राम टेम्पल वी हैव संकीर्तन, नगर संकीर्तन आज है। सो लेक्चर तो नहीं है, बट वी हैव नगर संकीर्तन। बट आई विल रिमाइंड हिम कि नो डिवोटीज, आपको अगर वो क्लास लेना चाहेंगे, कभी भी कुछ ले रहे तो हमें प्लीज लिंक भेजे, तो हम भी ज्वाइन करना चाहेंगे। आप सभी को सारे अपडेट्स मिलेंगे। सो एक्चुअली ही इज नॉट वेल माता जी, दैट्स व्हाई उनका हेल्थ ठीक नहीं रहता है। आपके साथ जब क्लासेस हो रही थी तब भी ही वाज कॉफिंग अ लॉट, सो बट we will consider. Yes, thank you. Next question. Any questions, or else we'll wind up? Okay, no questions. So I hope this is a very interesting chapter, right? कितने elements, कभी कभी ऐसा होता है dear devotees, chapter इतना heavy हो जाता है कि समझ में नहीं आता। मतलब if you read it more 10 times ना, तब आपको समझ में आएगा। So many things are going on in one chapter. ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। So कभी कभी heavy हो जाते हैं chapters. At least मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। This chapter तो these last few chapters बहुत interesting है। आप भगवत गीता में इसको पढ़िए, you can feel कि each and every line मेरे लिए लिखी है, मेरे लिए ही बोल रहे हैं, मेरे में ये qualities नहीं है, right? मुझे ही इतना strong बनना है, ऐसे feel। So it is all written for you. जो भी भगवत गीता पढ़ता है उसको लगता है मेरे लिए correct time पे मुझे ये सब जो है knowledge मिल रहा है, right? I wish it was there earlier, ऐसे लगता है, but it is all in the right time because time is Krishna, right? So thank you so much. We will wind up the class now. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी भक्तों की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। डिवोटीज, चलिए हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।